morning, sir. Good morning, sir. Okay, good morning. Morning. Okay, 14 student. Now start. We can start class now. So this is third unit. Higher order linear differential equation with constant coefficient. Okay, up to the first order and higher degree we have already studied about it, na? So now we will study about higher order linear differential equation. Higher order here meaning higher order. First order means one constant in the general solution, and higher order means the number of constants will be as the number of, that is order of differential equation. And linear differential equation with constant coefficient and variable coefficient, this is in your syllabus. Okay, so higher order means maybe second order, third order, fourth order. So in general we say that nth order differential equation, but we are concerning with only the questions in the higher order, that means second order or third order. Okay, so how can we write the solution for this type of equation? That is the main thing. Equation कैसे solution कैसे लिखना है main है, because theoretical part is not so necessary, only how can we find the solution. Okay, so here constant coefficient also variable, but variable coefficients are some special type of 2 or 3 special type are there, Cauchy's equation and Legendre equations. So we have to first study about writing solution of higher order linear differential. Linear means what? Linear means linear means what? अभी तक linear बहुत बार बोल चुका हूँ. Linear क्या होता है? Linear means dependent variable and its derivatives should not be applied as a multiplication. That is derivatives का और dependent variable का multiplication नहीं होना चाहिए equation में. Okay? So here higher order linear differential equation, higher order, suppose nth order. Okay, so we can write like this: nth order. Nth order means we are telling just in general nth order. N equals to 1 first order, 2 second order, 3 third order. So nth order linear differential equation. First time you write linear differential equation. Linear differential equation okay can be written as, means higher order derivatives होना है, nth order derivative, just like second degree equation you are telling quadratic equation. So quadratic equation means it is quadratic equation, also it is quadratic equation. Okay, and also this is quadratic equation. All these three are quadratic equation or not? Tell me. Hello, ये जो तीनों quadratic equation है ना? हेलो, तीनों क्यों है? क्योंकि x का वेरिएबल 2 है, सॉरी पावर 2 है, सेकंड डिग्री पावर 2 है, बट यहाँ पर x वाला टर्म नहीं है, कांस्टेंट नहीं है, यहाँ पर x वाला टर्म नहीं है, यहाँ पर सब है. सो तीनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सेकंड डिग्री इक्वेशन. सिमिलरली nth order differential equation means nth order to first order. Derivative may be or may not be, but nth order derivative, nth order differential equation, nth order should be there. So in general we can write like this: nth order derivative of y with respect to x. Y is dependent, x is independent, and then in general we can write like this. ये सब होना चाहिए ना इक्वेशन में. ऑर्डर डिक्रीज होता जाएगा, जैसे 2 है, 1 है, 0. सिमिलरली हियर nth ऑर्डर, n-1 ऑर्डर एंड डिक्रीज होता जाएगा. और सेकंड टर्म आल्सो राइट हियर फॉर अंडरस्टैंडिंग बेटर. ओके, सो प्लस d n-2 y upon dxn plus and so on. लास्ट टर्म क्या क्या पॉसिबिलिटी है, बिकॉज nth ऑर्डर है, इससे कम लेस एकदम लास्ट में 0
derivative. Zeroth derivative means itself y. And just we are making the combination बना रहे हैं ना. सो ये यहाँ पर क्या हो सकता है, सब में कोफिशिएंट आ सकता है. सब में क्या आ सकता है, कोफिशिएंट. कोफिशिएंट में क्या आएगा, y नहीं आना है. x से फंक्शन, x से रिलेटेड फंक्शन हो सकता है. सपोज यहाँ कुछ फंक्शन है और nth ऑर्डर बोलना है, दैट मींस ये जीरो नहीं होना चाहिए इसका कोफिशिएंट. सो वो वाले वैल्यू से क्या करना है, पूरे को डिवाइड कर देना है. राइट हैंड साइड में अगर जीरो भी है, नहीं है, कुछ फंक्शन है, ओके मे बी. सो यहां से जैसे डिवाइड करेंगे तो यहां जो भी रहेगा उसके नीचे आ जाएगा न्यू फंक्शन. सो इट कैन बी रिटन एज सपोज p1 है, दिस इज सपोज p2 है. p1 p2 मे बी द फंक्शन ऑफ x और मे बी कांस्टेंट, ओनली x नॉट y, एंड सो ऑन. हियर लास्ट वैल्यू pn, this is also function of x. And right hand side after dividing just we are denoting like capital X, that is what, function of x. So here p1 p2 p3 pn pn and x are function of x only, not of y, where p1 p2 pn and x are function of x only. Okay, x का फंक्शन हो सकता है. So this is general nth order linear differential equation like this. Now we will use for this operator symbol. Operator symbol means dy dx, dy dx, dy upon dx. It can be written as dy. D means what? D by dx. This is operator, differential operator with respect to x, differential. D, only D, that's D. And if D second order, that is this. D square means d2y by dx square. Similarly, third order you can write like dqy, that is cube. Cube means this. So by using the operator d by dx, this operator can be used, and this equation can be written in short. This is what, nth order linear differential equation with coefficients. Here p1 p2 p3, if this p1 p2 p3 and pn are function of x, then we say that this is linear differential equation with constant variable coefficient. If p1 p2 p3 pn are constants, means ये जो कोफिशिएंट है पूरे कांस्टेंट हो, तो हम क्या बोलेंगे, कांस्टेंट कोफिशिएंट वाला इक्वेशन है. ओके, सो जनरली वी आर सॉल्विंग with constant coefficient problem. There are 2 or 3 variable coefficients. Okay, so by using this notation it can be written what, dny plus p1. Suppose now we will generally solve with constant coefficient, with constant coefficient, with constant coefficient can be written as like this. In that case you can say k1 k2 up to kn. Okay, so these are constant. Where k1 k2 kn are constant and x may be the function of x only. क्लियर है? कांस्टेंट कोफिशिएंट वाले इक्वेशन पे कंसीडरेशन करना है. ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट
independent from x and y, and x may be the function of x or may not be, maybe 0 also, 0 constant value, or maybe the function of x. This is general equation, linear differential equation with constant coefficient. So dn y plus constant k1, it can be written dn minus 1 y with this symbol, operator symbol. So finally we can write like this, kn y equals to x. Okay, and this is also written as like this, y, here y. So take common dn, not common, this is outside, because this is operator and this is y. Operator is applied on the y. So k1 dn minus 1 plus up to kn y equals to x. So what is this? Constant and d related to d. So this is function of d. We can say it is function of d. Function of d. Function of d y equals to x. This is our compact form. ये compact form में लिखा हुआ है. ये fd है. Function of fd. d means maybe d. fd means what? Maybe d plus 1, d square plus 2d, d square q plus 2d plus 3, different type of combination maybe, because this is what, just like polynomial in d linear expression in d. Linear expression means power 1, second degree, 4th degree, 5th degree, 6th degree, and maybe. So nth degree polynomial, this is fd y is dependent variable, and x may be the function of x or may not be the function of x. So this is our compact form. What? Nth order linear differential equation with constant coefficient. Nth order, that is, this is nth degree polynomial. Now we have to find the solution of this equation. Here constant coefficient we will consider. Okay. So ये जो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन ही निकालना है. क्लियर हुआ? राइट हैंड साइड सपोज करो x का फंक्शन है और इधर है ना fd जो है और d से रिलेटेड एक्सप्रेशन है, पॉलिनोमियल टाइप का कुछ है, और y है यहाँ पर डिपेंडेंट वेरिएबल. इस टाइप का अगर डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसको सॉल्व करना है, सॉल्यूशन कैसे लिखना है. क्लियर है? बिकॉज ये d का फंक्शन है, d में पावर कुछ भी आ सकता है, सो हायर ऑर्डर हो गया. दिस इज हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन. नाउ टू एवल्यूएट दिस द सॉल्यूशन मींस इसका सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए कंसीडरेशन कैसे करना है, इस पे ध्यान देना है. ये तुम लोगों को अभी समझ में आया कि हायर ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का कॉम्पैक्ट फॉर्म व्हाट इज दिस. ये फॉर्मेट समझ में आया? यस सर. कोई डिफरेंशियल इक्वेशन दिया होगा, हायर ऑर्डर वाला डिफरेंशियल इक्वेशन दिया होगा, कांस्टेंट कोएफिशिएंट होगा, तो उसको सॉल्व करोगे ना तो y के पहले इस तरफ ये क्या होगा, d का फंक्शन होगा. सेकंड डिग्री, थर्ड डिग्री, फोर्थ डिग्री कुछ भी हो सकता है, बट जनरली जो क्वेश्चन रहता है वो थर्ड डिग्री तक ही रहता है. थर्ड डिग्री पॉलिनोमियल यू कैन फैक्टराइज, टू सेकंड डिग्री पॉलिनोमियल यू कैन फैक्टराइज. सेकंड डिग्री वेरी इजी, लीनियर तो लीनियर होता है, और थर्ड डिग्री फैक्टराइजेशन जो पॉलिनोमियल होगा उसको फैक्टराइज करना पड़ेगा, तब जाके सॉल्यूशन निकलता है. इसका सॉल्यूशन कैसे लिखना है, ये मतलब समझ में आ गया कि क्वेश्चन क्या है. क्वेश्चन अगर कांस्टेंट कोएफिशिएंट के साथ दिया होगा तो इस फॉर्म में लिख सकते हैं, अब भी पता चल जाएगा कि क्या है. ओके, सो नाउ फॉर राइटिंग इट्स सॉल्यूशन, है ना, फॉर फाइंडिंग सॉल्यूशन देयर आर टू मेन पार्ट्स ऑफ दिस इक्वेशन. इस इक्वेशन के दो पार्ट्स हैं मेन, है ना. फर्स्ट ऑफ ऑल जस्ट वी विल कंसीडर राइट हैंड साइड हैविंग जीरो, बिकॉज गिवन इक्वेशन में राइट हैंड साइड जीरो होना जरूरी नहीं. इफ राइट हैंड साइड जीरो है देन क्या होना है उसको देखना है फर्स्ट, एंड देन इफ नॉट जीरो फिर कैसे करना है. मेन थिंग इज सेकंड पार्ट, इट इज नॉट जीरो पार्ट. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर्मेट समझ लो, सॉल्यूशन होता क्या है. क्लियर है? सो इन शॉर्ट जस्ट विल राइट लाइक दिस. ये fd y equals to x. Okay, this is nth order linear differential equation with constant coefficient. Clear? अब दिस इज और गिवन इक्वेशन.
इसका सॉल्यूशन फाइंड करना है। सपोज राइट हैंड साइड इज नॉट जीरो, जीरो नहीं है, राइट हैंड साइड में जीरो नहीं है। सो देन सॉल्यूशन फाइंड करने का टू पार्ट्स होना है। फर्स्ट ऑफ ऑल सपोज ये राइट हैंड साइड जीरो है, देन वन पार्ट में कंप्लीट है सॉल्यूशन। क्लियर है? फर्स्ट ऑफ ऑल our general equation is this. Okay, its solution contains two parts. One is complementary function, one is particular integral. So first of all, to find its solution, first we take FD y equals to 0. इसका सॉल्यूशन निकालना है तो पहले इसको कंसीडर करेंगे, राइट हैंड साइड को हम 0 ले लेंगे। ओके, सो दिस इज इक्वेशन 2। अब हमको इसका सॉल्यूशन निकालना है, ये एक पार्ट है। सेकंड, अगर ये गिवन इक्वेशन है, मे बी द इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ लाइक दिस, राइट हैंड साइड 0 है, बड़ा सिंपल क्वेश्चन रहता है, ये जनरल सिंपल पार्ट है, ये इसके अंदर इन्वॉल्व है। अगर इसको सॉल्व करना है तो पहले ये करना पड़ेगा, और अगर राइट हैंड साइड ऑलरेडी 0 दिया हुआ है तो बस एक ही पार्ट करना है। जब इसको सॉल्व करेंगे, जो सॉल्यूशन मिलेगा, कंप्लीट सॉल्यूशन मिलेगा इसका, बट वो कंप्लीट सॉल्यूशन इज कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, उसका वन पार्ट होगा इसका। सो फर्स्ट हम राइट हैंड साइड 0 ले लेते हैं। अब क्या करना है, अब अपना काम है इसको सॉल्व करना। इसको जैसे सॉल्व करेंगे ना, जो सॉल्यूशन आएगा वो इसका कंप्लीट सॉल्यूशन है। कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ दिस इज नोन एज कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन ऑफ 1। तो ऐसा है, तो इसको सॉल्व करने का टेक्निक क्या है, इसको सॉल्व करेंगे। एफडी, व्हाट इज एफडी? एफडी इज nth डिग्री पॉलिनोमियल। एफडी इज nth डिग्री पॉलिनोमियल। अभी जो हम लोगों ने लिखा था, एफडी nth डिग्री पॉलिनोमियल है। nth डिग्री पॉलिनोमियल जस्ट लाइक सेकंड डिग्री पॉलिनोमियल। अगर सेकंड डिग्री पॉलिनोमियल होता है तो 2 फैक्टर बनता है। 1 डिग्री पॉलिनोमियल लीनियर मींस 1 फैक्टर बनता है। क्यूबिक मींस व्हाट, 3 फैक्टर बनता है। सिमिलरली nth डिग्री अगर होगा, ये nth डिग्री पॉलिनोमियल, तो n फैक्टर विल बी देयर। इसमें कितने फैक्टर होना है? n फैक्टर होना है। सो हियर वी कैन राइट आल्सो, वो जो जनरल नोटेशन है, dn प्लस k 1 dn minus 1 plus and so up to kn this into y equals to 0। यही तो है fd, मतलब यही है, ये वाला fd इस टाइप का है। तो इसको सॉल्व करने के लिए ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखना पड़ेगा। क्या करते हैं, इसको फैक्टराइज करते हैं। ओके, जस्ट लाइक सपोज फैक्टराइज करें इसको, क्या कैसे कितना फैक्टर मिलेगा इसमें? n फैक्टर मिलना है। n फैक्टर विल बी देयर, राइट हैंड साइड 0, n फैक्टर। n फैक्टर मींस बिकॉज़ पॉलिनोमियल इन d, सो d minus 1, d minus something, d minus 2, कांस्टेंट कोएफिशिएंट। जैसे ये सेकंड डिग्री को फैक्टर करते हैं तो क्या x minus something, x minus something plus something, x minus x minus x minus and so on, इस टाइप का होता है। तो यहां भी फैक्टराइज करेंगे तो क्या मिलेगा? d minus something, d minus something है, d minus m1 सपोज, d minus m2, ये m1 m2 कांस्टेंट होगा बिकॉज ये कांस्टेंट कोएफिशिएंट वाला है। फैक्टराइज किया हमने, nth डिग्री है तो n फैक्टर मिलेगा। सो सपोज dn, d minus mn, these are the n factors. Now for solving this equation we can take this in of y, this of y, this of y, इनमें से किसी एक को लेंगे ना, एक डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेगा, उसको सॉल्व करेंगे, एक सॉल्यूशन मिलेगा। तो इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ कितने सॉल्यूशन मिलेंगे? n सॉल्यूशन। n सॉल्यूशन कॉरेस्पॉन्डिंग टू n रूट्स। ये इसके कितने रूट्स है? n रूट्स है, m1 m2 m3 mn, m रूट्स है। सो m रूट्स है, m रूट के कॉरेस्पॉन्ड में m सॉल्यूशन मिलेगा, n रूट्स के कॉरेस्पॉन्ड में n सॉल्यूशन मिलेगा। फॉर एग्जांपल सपोज ये जैसे पहला वाला ले लेते हैं ना, ये d minus m1, d minus m1 y equals to 0। ये वाला फैक्टर है, ऐसा लिखा जाए यहाँ पर d minus m1 कांस्टेंट एंड y equals to 0। इट कैन बी सॉल्व्ड ना,
क्या होगा, d मीन्स व्हाट, dy dx। सो इसको क्या लिख सकते हैं, ये dy माइनस m1y इक्वल्स टू 0। इसका मीनिंग क्या हुआ, dy अपॉन dx इक्वल्स टू m1y। इट कैन बी सॉल्व ना, m1 कांस्टेंट है, कौन से मेथड से सॉल्व होगा, हेलो टेल मी, किस मेथड से सॉल्व होगा। अगर पहले फैक्टर के कॉरस्पॉन्ड में इक्वेशन बनाया हमने, इसको सॉल्व किया तो क्या आएगा सॉल्यूशन इसका, हेलो, dy by dx इक्वल टू m1y। विच मेथड यू हैव टू यूज, पुराना मेथड है ना, कोई भी एक तो इक्वेशन बना है फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री, कौन सा फॉर्मेट लगेगा, सेपरेबल फॉर्म है, y को इधर ले आना है, x को उधर ले जाना है, तो क्या मिलेगा, log y इक्वल्स टू m1x है ना। ये जैसे वन मैं डायरेक्ट लिख दे रहा था, यहां पर ऐसा होना है ना, dy अपॉन y इक्वल्स टू m1x, m1x नहीं m1dx। इसको सॉल्व करेंगे क्या होगा, log y इक्वल्स टू m1x प्लस कांस्टेंट को log लिख लेते हैं, ठीक है। इसको सॉल्व करते, देखो इसको बस समझना है और कुछ नहीं है। ये क्या है, log y हो जाएगा इधर, और इधर क्या हो जाएगा m1x प्लस log ऑफ, हमने ले लिया सपोज c ले लिया, सो अब क्या हो जाएगा, ये कांस्टेंट ले सकते हैं ना, इसको इधर ले आते हैं तो log y बाई c आएगा इक्वल्स टू m1x होगा। इसको क्या लिख सकते हैं, y बाई c इक्वल्स टू e टू द पावर m1x। यू कैन राइट लाइक दिस ना, लिख सकते हैं ना इस टाइप से log को, log of this is equals to m1x, so y by c equals to e to the power m1x। so from here you can write like this, y equals to constant c e to the power m1x, ये हो गया। so इसके कॉरेस्पॉन्ड सभी के कॉरेस्पॉन्ड सॉल्यूशन इसी टाइप का है, बिकॉज यहाँ m1 है तो उसमें दूसरे में m2 आएगा, तीसरे में m3 आएगा, और जितने सारे कोएफिशिएंट्स है n कोएफिशिएंट्स, तो मतलब n फैक्टर्स, तो n जो रूट्स है, n रूट्स के n सॉल्यूशन वी कैन गेट। और इसमें क्या होना है, हर एक में कांस्टेंट को अलग अलग रखना है, पहले वाले में ये मिला, दूसरे वाले में और दूसरा मिलेगा c2, फिर c3 c4, बट c2 लेंगे तो क्या आएगा यहाँ पर m1x m2 आएगा, बिकॉज सेकंड रूट के कॉरेस्पॉन्ड होगा। सो n रूट्स आर देयर, तो n सॉल्यूशन वी कैन गेट लाइक दिस। और इन जब का जो प्लस करेंगे, n सॉल्यूशन का प्लस करेंगे, देन आल्सो दैट विल बी द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, बिकॉज जब भी यहां पर ये ऑपरेटर के सामने सॉल्यूशन को रखते हैं वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, कौन, ऑपरेटर, और n सॉल्यूशन है तो n पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट होगा, n पार्ट मिलेगा इसी टाइप का, और एक फैक्टर के कॉरेस्पॉन्ड सेटिस्फाई होगा तो सभी सेटिस्फाई हो जाएगा। दैट मींस जो n सॉल्यूशन मिलेगा इस टाइप का, उसका जो कॉम्बिनेशन है, लीनियर कॉम्बिनेशन, सबको प्लस कर देना है, दैट विल बी द कंप्लीट सॉल्यूशन। ये तो एक सॉल्यूशन है, सबको जब प्लस कर देंगे ना, कंप्लीट सॉल्यूशन किसका, इसका। सो इट्स कंप्लीट सॉल्यूशन कैन बी रिटन एज व्हाट, वही उसी टाइप n, इट्स कंप्लीट सॉल्यूशन इज गिवन by, बस इसको याद रखना है, y इक्वल्स टू c1 e टू द पावर m1x प्लस c2 e टू द पावर m2x, बिकॉज फर्स्ट के लिए, सेकंड के लिए, फर्स्ट का रूट, सेकंड रूट एंड सो ऑन, n अप टू n पार्ट्स, cn एंड e टू द पावर mnx। ये कंप्लीट सॉल्यूशन है, बिकॉज इसमें nth डिग्री का है, सॉरी nth ऑर्डर है, यहां पर तो पॉलिनोमियल में डिग्री बता रहे थे हम लोग, बट ये nth ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, nth ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन मींस इट्स कंप्लीट सॉल्यूशन विल कंटेन n आर्बिट्ररी कांस्टेंट, सो c1 c2 c3 अप टू cn, जितने ऑर्डर का होता है उतने कांस्टेंट होना चाहिए सॉल्यूशन में, दैट इज द कंप्लीट सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन। तो इसका जो कंप्लीट सॉल्यूशन है, वी कैन आल्सो से जनरल सॉल्यूशन, बिकॉज़ राइट हैंड साइड 0, सो इसका जो कंप्लीट सॉल्यूशन है वो ये है ना। ये डिपेंड किस पे करेगा, अभी इस पे एक चीज ध्यान देना है, डिपेंड इसमें करेगा ये जो रूट्स है, रूट अगर दो रूट इक्वल भी हो सकता है, तीन रूट इक्वल भी हो सकता है, कॉम्प्लेक्स नंबर भी हो सकता है, बिकॉज सपोज सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, सेकंड ऑर्डर होगा तो डी स्क्वायर प्लस 2d प्लस 5 इक्वल्स टू 0, ये ऐसा भी फैक्टर हो सकता है। अगर इसका फैक्टराइजेशन करेंगे
तो ये डी की जो है सेकंड डिग्री इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको सॉल्व करना है। ये फैक्टराइजेशन है, मतलब अगर ये भी नहीं लेंगे तो फैक्टराइजेशन करना है। ये फैक्टर करेंगे तो क्या होगा, 2 फैक्टर बनेगा। मे बी कॉम्प्लेक्स नंबर भी हो सकता है, इक्वल रूट्स भी हो सकता है, डिस्टिंक्ट रूट भी हो सकता है। तो वो 3 केस में इसको लिखना कैसे है, दैट इज द मेन पार्ट ऑफ दिस कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ दिस। इसका जो कंप्लीट सॉल्यूशन है ये डिफरेंट टाइप का। अब ये देखना है कि m1 m2 m3 mn इनमें से इक्वलिटी भी है क्या, कॉम्प्लेक्स नंबर भी है क्या। देयर आर 3 केसेस, इक्वल एंड रियल एंड डिस्टिंक्ट, मतलब रियल नंबर होना चाहिए और डिस्टिंक्ट होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए। जैसे ये सेकंड डिग्री है तो 2 रूट्स डिस्टिंक्ट 1 2 3 4 इस टाइप का, -1 3 मे बी। कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है, कॉम्प्लेक्स अगर होगा तो कॉम्प्लेक्स ऑलवेज पेयर में होता है। अगर इसी का कॉम्प्लेक्स रूट मिलता है तो कैसे रूट मिलेगा, अल्फा प्लस माइनस आई बीटा। एक रूट अगर अल्फा प्लस आई बीटा होगा, दूसरा रूट अल्फा माइनस आई बीटा होगा, ये तो पेयर में होता है, ठीक है। और मे बी दोनों रूट्स इक्वल हो। सो देयर आर 3 केसेस corresponding to 3 cases. How can we write the solution? और इसको क्या बोलेंगे, complete solution of this right hand side 0 for this also. अगर केवल ये है तो कंप्लीट सॉल्यूशन ये है, खत्म है। अभी यहाँ पर क्या करना है, रूट्स देखना है, रूट्स किस टाइप का है, वो रूट्स के टाइप के हिसाब से इसको लिखना है। रियल एंड डिस्टिंक्ट होगा तो इसी टाइप का सॉल्यूशन होता है, सब डिफरेंट है तो ये होता है। क्लियर है। तो हियर 3 केसेस आर देयर, तो राइट करना है। बट जब राइट हैंड साइड 0 नहीं है उस केस में भी ये करना है, और इसको कंप्लीट सॉल्यूशन इसका बोलेंगे और कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन इसका बोलेंगे। और फर्दर पार्ट इसका जो है वो नेक्स्ट क्लास में आएगा, बिकॉज पर्टिकुलर इंटीग्रल और दैट इज द मेन थिंग। पूरे यूनिट में वही सब करना है, पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालना है। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकाल रहे हैं इसके लिए, और इसके लिए कंप्लीट फंक्शन, और इसका राइटिंग करना है। सॉल्यूशन को कैसे राइट करना है, देयर आर 3 केसेस। फर्स्ट ऑफ ऑल रियल एंड डिस्टिंक्ट, सेकंड मे बी इक्वल रूट्स, एंड थर्ड मे बी कॉम्प्लेक्स रूट्स। सो इसमें कितने रूट्स होते हैं, n रूट्स। सपोज फर्स्ट केस 1 में लिख सकते हो, इफ all roots are real and distinct, then distinct है और रियल नंबर है, then अभी CF की बात नहीं करेंगे, अभी कंप्लीट सॉल्यूशन। CS ऑफ 1 इज इसका कंप्लीट सॉल्यूशन, y इक्वल्स टू nth ऑर्डर है, n कांस्टेंट, हेलो क्लियर हुआ, क्या लिखा हूं, हेलो यस सर। सब लोग ध्यान दे रहे हो कि इधर उसी दूसरे काम में बिजी तो नहीं हो जाते हो पढ़ाते समय में, हैं? हेलो यस सर। अभी क्या बताया अभी, यस सर। हाँ कंटिन्यूअसली देखते रहना है, बिकॉज लिखने का मौका तो मिलता नहीं है। कंटिन्यूअसली पढ़ाऊंगा तो कहाँ हो पाएगा ना, तो इसमें ज़्यादा पढ़ाई हो जाती है इसलिए ऑनलाइन में, बट उतना सीरियस रहते नहीं है कई लोग। ये क्या लिखा अभी, सॉल्यूशन जब निकालने जाएंगे, जो इसका रूट्स निकालेंगे ना, रूट्स ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाएंगे, पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करेंगे, रूट्स निकलेगा। रूट्स अगर रियल हो और डिस्टिंक्ट हो, डिफरेंट टाइप का हो, तो ये सॉल्यूशन होता है। बिकॉज n कांस्टेंट है, n रूट्स होगा, सभी डिफरेंट है, m1 m2 m3 सब डिफरेंट है। ये फर्स्ट केस। सेकेंड केस में क्या हो सकता है, रूट्स इक्वल हो सकता है। इफ 2 रूट्स आर इक्वल, सपोज इफ, या रूट्स क्या था, हमने रूट्स क्या बनाया था, m1 m2 m3 mn, और इसमें से 2 रूट्स इक्वल है, सपोज 2 रूट्स इक्वल है, m1 इक्वल्स टू m2, 2 रूट्स इक्वल है, बाकी सब डिस्टिंक्ट है, m1 इक्वल्स टू m2 एंड m3 m4 अप टू mn आर रूट्स। इसका मीनिंग समझ में आया, मैंने 2 रूट को इक्वल लिया, पहला वाला 2 रूट इक्वल है,
देन सॉल्यूशन कैसे लिखना है ये देखना है। अगर ये दोनों इक्वल है तो ये देखो ये m1 और m2 इक्वल है, मतलब ये m1 और m2 की जगह पे m1 लिख सकते हैं, m2 m2 लिख सकते हैं। सो वो कॉमन आ जाएगा, ब्रैकेट में बच जाएगा c1 प्लस c2। c1 प्लस c2 एक न्यू कांस्टेंट होता है, तो एक कांस्टेंट कम हो जाएगा। इन दैट केस कांस्टेंट को n रखना है, n नंबर ऑफ कांस्टेंट होना चाहिए। तो उसके लिए इसको लिखने का जो टेक्निक है, सॉल्यूशन क्या होगा, कांस्टेंट यहां m1x लिख दिया, m1 और m2 सेम है तो ये कॉमन आया तो c1 प्लस c2 आएगा। बट c1 प्लस c2 लिखने का मतलब सिंगल कांस्टेंट, उसको टू डिफरेंट टाइप का होना है, इसलिए क्या लिखते हैं, यहां पर एक लीनियर कॉम्बिनेशन देते हैं c2x, c1 प्लस c2x। बिकॉज ये m1 जो है ये दो रूट है, दोनों इक्वल है, उसके लिए दो कांस्टेंट देना है, इसलिए इसका जो कोफिशिएंट बनाएंगे c1 प्लस c2x एंड रिमेनिंग वाले को लिख देना है। कितना कांस्टेंट हो गया, 1 2 कांस्टेंट हो गया तो थर्ड कांस्टेंट लिख दिया e टू द पावर m 3x प्लस अप टू cn e टू द पावर mnx। ये हो गया, ये सॉल्यूशन है। दो रूट्स इक्वल है तो इस टाइप से लिखना है, यहां पर 1 2 3 अप टू n कांस्टेंट है। इफ थ्री रूट्स इक्वल, if m1 equals to m2 equals to m3, then अगर तीन रूट इक्वल है तो क्या करना पड़ेगा, तो तीन रूट इक्वल है तो तीनों में से बाहर आ जाएगा वो, फिर उसका कॉम्बिनेशन लिखने के लिए इस टाइप से लिखना है, y equals to c1 plus c2x plus c3x स्क्वायर, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन लिखना पड़ेगा। या c1 plus c2x लिखा था, यहाँ पर c1 plus c2x plus c3x स्क्वायर, तीन कांस्टेंट रखा और तीनों में से e टू द पावर m1x बाहर गया, बिकॉज इक्वल है तीनों m1x। और कितने कांस्टेंट हो गए यहाँ पर, तीन कांस्टेंट, एक कांस्टेंट और लिखना पड़े तो आगे का कांस्टेंट चालू करना पड़ेगा, c4 e टू द पावर m4x एंड अप टू c1 e टू द पावर mnx। क्लियर हो रहा है ये क्या लिखा हूं, ये क्या है, जब रूट्स इक्वल होगा, रियल होगा और इक्वल होगा, इक्वल रूट्स होगा तो इस टाइप से सॉल्यूशन लिखना है। तो दो रूट इक्वल है तो ऐसे, और तीन रूट्स इक्वल है तो ऐसे। नंबर ऑफ कांस्टेंट n होना चाहिए, सो c1 c2 c3 c4 c5 अप टू cn। क्लियर हुआ कैसे लिखना है, हेलो, यस सर। ये याद रखना है कैसे लिखना है। और एक और है कॉम्प्लेक्स का, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना। थर्ड केस में क्या हो सकता है, रूट्स पे क्या क्या हो सकता है, रूट्स रियल एंड डिस्टिंक्ट हो सकता है पहले नंबर पे, रूट इक्वल भी हो सकता है, दो रूट इक्वल है तो ऐसे, तीन रूट है तो ऐसे, सिमिलरली फोर रूट इक्वल है एंड सो ऑन। उसके बाद रूट कॉम्प्लेक्स हो सकता है, कॉम्प्लेक्स मींस अल्फा प्लस माइनस आई बीटा, यही फॉर्म में होता है। जैसे कभी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को भी सॉल्व करते हैं, माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a, ये फॉर्मूला लगाते हैं तो क्या आ जाता है, 2 प्लस माइनस 3i, इस टाइप का आ जाता है। यही तो है, ये अल्फा है ये बीटा है, अल्फा प्लस माइनस आई बीटा, इस फॉर्म में आएगा कॉम्प्लेक्स रूट। ऑलवेज पेयर में होता है, पेयर में होने का मतलब होता है एक प्लस साइन के साथ एक माइनस साइन के साथ। तो कॉम्प्लेक्स रूट्स अगर है तो सॉल्यूशन कैसे लिखना है, और कॉम्प्लेक्स रूट भी अगर इक्वल हो तो कैसे लिखना है। कॉम्प्लेक्स रूट इक्वल होने का मीनिंग क्या होता है, उसमें दोनों पेयर कॉम्प्लेक्स होना है अगर चार रूट्स है तो। सो हियर सपोज थर्ड केस इज व्हाट, इफ m1 if roots are complex number, that is alpha plus minus I beta are one pair of roots and remaining are real and distinct, then ये तो पता है कितने रूट्स है, n रूट्स है, एक पेयर वो है मतलब दो रूट्स हो गया, बाकी सब रियल एंड डिस्टिंक्ट है। सो सॉल्यूशन कैसे लिखना है, सो रिमेंबर
ये अल्फा प्लस माइनस आई बीटा अगर कॉम्प्लेक्स रूट आना तो पेयर में होगा, इस टाइप का होगा। इसका सॉल्यूशन लिखने का जो टेक्निक है, यू कैन डिराइव इट, बट जस्ट डायरेक्ट लिखना है। कैसे? y इक्वल्स टू ई टू द पावर अल्फा एक्स, रियल पार्ट क्या लिखना है? देखो ये दो रूट है, दो कांस्टेंट यूज करना है। यहाँ पर दो रूट है, रियल पार्ट अल्फा है, सो ई टू द पावर अल्फा एक्स फर्स्ट यू हैव टू राइट, एंड देन ब्रैकेट के अंदर लिखना है पहला कांस्टेंट, फिर लिखना है इमेजिनरी पार्ट के साथ बीटा एक्स प्लस C2 साइन बीटा एक्स। इस टाइप से सॉल्यूशन आएगा। क्लियर हुआ? e टू दी पावर अल्फा एक्स, अल्फा कौन है? रियल पार्ट है, जो भी कॉम्प्लेक्स रूट होना है, और ये पेयर में होता है तो दो रूट्स है, दो रूट है तो दो कांस्टेंट, सो e टू दी पावर अल्फा एक्स ब्रैकेट में C1 cos बीटा एक्स C2 sin बीटा एक्स। ये बीटा मतलब वो रियल इमेजिनरी पार्ट है, अल्फा मींस रियल पार्ट है। ये दो कांस्टेंट के साथ इस पेयर का पार्ट हुआ, एंड रिमेनिंग पार्ट आर सेम, तो दो कांस्टेंट हो गया। बाकी पार्ट में क्या लिखना है? वही C3 e टू द पावर m3x, C4 e टू द पावर m4x एंड सो ऑन, Cn e टू द पावर mnx। जो बचेगा वो सब उसी फॉर्म में होगा। दो कॉम्प्लेक्स था तो ऐसा है ना। सपोज कॉम्प्लेक्स रूट्स आर इक्वल इफ two pair of complex root, two pair of complex roots are equal। देखो two pairs of complex roots are equal, मतलब कॉम्प्लेक्स रूट भी इक्वल है। कॉम्प्लेक्स रूट तो पेयर में होता है, तो एक पेयर है दूसरा पेयर भी सेम है, यही है। तब कैसे लिखना है? If two pairs of complex roots are equal, that is alpha plus minus I beta and alpha plus minus I beta, यही तो हुआ, दो पेयर इक्वल है। इक्वल मींस क्या है? रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट इक्वल होगा। ये चार रूट हो गया, रिमेनिंग आर सेम। देन रिमेनिंग आर सेम, तो कैसे करना पड़ेगा? ये चार रूट है, चार रूट के लिए चार कांस्टेंट होना चाहिए, तो इसी में लिखना पड़ेगा, बिकॉज ये अल्फा बीटा तो सेम है। तो ये जो C1 है और ये जो C2 है उसी जगह पे एक एक बढ़ाना है। कैसे लिखेंगे फिर? y इक्वल्स टू e टू द पावर अल्फा एक्स, वो तो दोनों के लिए सेम है। फिर ब्रैकेट के अंदर ये जो C1 है यहां पर दो कांस्टेंट लिखना है, C1 प्लस C2x cos बीटा एक्स। फिर ये जो C2 है यहां पर और दो कांस्टेंट लिखना है, C1 C2, देन यहां पर C3 प्लस C4x sin बीटा एक्स। ये जो पार्ट हमने लिखा है, ये इस चार रूट है यहां पर इक्वल है कॉम्प्लेक्स रूट, तो चार कांस्टेंट 1 2 3 4 कांस्टेंट के साथ लिख दिया, सेम फॉर्मेट में लिखा है। यहां पर दो बनाया, यहां पर दो बनाया, रिमेनिंग आर सेम। 4 हो गया यहां पर, फिर चालू हो जाएगा C5 e टू द पावर m5x एंड सो ऑन अप टू Cn e टू द पावर mnx। क्लियर हुआ? ये राइटिंग। अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, है ना? हेलो, क्लियर हुआ? यस सर। कॉम्प्लेक्स रूट के केस में ऐसे लिखना है, एक पेयर में। दो पेयर अगर इक्वल है तो ऐसे लिखना है, कांस्टेंट यहां पर बनाना है। सो प्रैक्टिस करेंगे ना, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वो ऑटोमेटिक बन जाएगा। ये कंप्लीट सॉल्यूशन है किसका? ये राइट हैंड साइड को जीरो लेके जनरली we will solve this type of equation। यहाँ पर x का कुछ वैल्यू है, बट इधर कांस्टेंट कोएफिशिएंट ही है, और राइट साइड में फंक्शन ऑफ x अगर रहेगा तो इसका सॉल्यूशन का एक पार्ट जो है ये होता है, और अगर राइट हैंड साइड ऑलरेडी जीरो है तो इसका कंप्लीट सॉल्यूशन ही ये होता है। ठीक है? इसका जो सॉल्यूशन है, इसका राइट हैंड साइड जीरो लेके वो CF बोलेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। सो वो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस होगा। अभी हम लोगों ने क्या देखा? कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ f dy इक्वल्स टू 0। इसको सॉल्व करें। क्लियर? नाउ सी क्वेश्चन 1 by 1 क्वेश्चन लेते हैं, बहुत बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। ओके, सॉल्व dq माइनस 4d² प्लस 4dy इक्वल्स टू 0। ये d के फॉर्म में ही दिया हुआ है डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, डिफरेंशियल इक्वेशन जो है ना किसके फॉर्म में दिया हुआ है?
डी के फॉर्म में। सो ये जो पॉलिनोमियल ऑफ विच डिग्री, कितना डिग्री का पॉलिनोमियल दिया हुआ है यहां पर, हेलो, डी में, रिप्लाई मी, हेलो, 3 डिग्री का है ना। अब ये इसका तो फैक्टराइजेशन इजी होगा बिकॉज फर्स्ट सेम में हम लोग पढ़े थे ना आइगन वैल्यू, हेलो, आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर पढ़े थे। उस समय क्यूबिक को सॉल्व करने का जो टेक्निक होता है, यू नो, सॉल्व करने का जो टेक्निक है, यहां तो इजी है, डी कॉमन आ जाएगा। सो सी, ये जो फैक्टर होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये इसका फैक्टराइजेशन यू नो कितने सारे टेक्निक है, उस पहले भी बताया था शायद। इसको 2 फैक्टर बनना है, मिडिल टर्म स्प्लिट कर लो, परफेक्ट स्क्वायर कर लो, या तो क्या दूसरा टेक्निक क्या होता है, 2 वैल्यू मतलब राइट हैंड साइड 0 ही सपोज कर लो। इसको फैक्टराइज करने का एक सोल्यूशन तो एक तो ये रहता है माइनस बी माइनस वो जो फॉर्मूला है बी स्क्वायर माइनस 4ac वाला अपन 2a, इससे सॉल्व हो जाता है फैक्टराइजेशन। ये तो लास्ट वाला है, फैक्टर बना सकते हैं ना, ये 2 फैक्टर बनता है इससे। और अगर क्यूबिक आता है, क्यूबिक वाला है ये 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 6 इक्वल्स टू 0, ये जो है क्यूबिक फैक्टर है, इसको भी 3 फैक्टर बनेगा। ये जो 3 फैक्टर बनाने वाला क्वेश्चन है, इसमें सब लोगों के साथ प्रॉब्लम होता है। ये इसका फैक्टराइजेशन कैसे होता है, यहाँ पर क्यूबिक है, ये इजी है, देखो कांस्टेंट पार्ट नहीं है, सो इट कैन बी वेरी सिंपली यू कैन फैक्टराइज। सो इट्स सॉल्यूशन कैन बी रिटेन। पहले तो एक एक करके हमको ये देखना है, पहले ये कैसे करना है, पहले तो ये इसका सॉल्यूशन निकाल लेते हैं। इसका सॉल्यूशन तो बिल्कुल सिंपल है। फर्स्ट ऑफ ऑल जब हम इसको सॉल्व करते हैं, किसको, एफ डी वाई इक्वल्स टू 0, इसको ये एफ डी है, इसका ना ये लिखते हैं ऑक्सिलरी इक्वेशन बोलते हैं इसको। जब हम रूट्स निकालते हैं, रूट्स वो जैसे m1 m2 m3 निकालना है, डी की वैल्यू है। समटाइम्स इसका जो इक्वेशन है, सपोज ये इसका जो फैक्टराइजेशन है ऐसा है, डी स्क्वायर प्लस 2d प्लस 3 इक्वल्स टू 0, ऐसा मींस नॉट 0 मींस इस टाइप का फैक्टराइजेशन, एफ डी की वैल्यू ये है। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होता है, ऑक्सिलरी इक्वेशन हम क्या बोलते हैं, रूट्स निकालना है। सो इसको एफ डी को इक्वल टू 0 ले लेते हैं, दिस इज 0, डी स्क्वायर प्लस 2d प्लस 3 इक्वल्स टू 0, और इसको सॉल्व करते हैं। डी की 2 वैल्यू आएगा, 2 वैल्यू आना है, उस दोनों वैल्यू को निकालना है, m1 m2 हो जाएगा। और 3 है, क्यूबिक है अगर, तो 3 वैल्यू आएगा, 3 वैल्यू आएगा, ये सब निकालना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर राइटिंग ऑक्सिलरी इक्वेशन, subsidiary equation, you can say anything, auxiliary equation for the differential equation this, वो जो differential equation दिया है उसका auxiliary equation means f dy equals to 0 लिख लेते हैं, means ये जो polynomial है, जो polynomial इसको equals to 0 लिख लेते हैं। so sometimes d ना लिख के d के जगह पे किसी बुक में m भी लिखते हैं, m, जैसे इसको लिखना है तो क्या लिखना है, m³ प्लस 2am प्लस 3 इक्वल्स टू 0, ये लिख लेते हैं और m को सॉल्व करके 2 वैल्यू 3 वैल्यू जो भी है निकाल लेते हैं, वो हो जाता है रूट्स। और बस बीएस ग्रेवाल में डी यूज कर रहे हैं, एम नहीं लिखते हैं, किसी बुक में एम भी liख लेते हैं और सॉल्व कर लेते हैं। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन मींस एफ डी इक्वल्स टू 0। सो हियर वी कैन राइट हियर ऑक्सिलरी इक्वेशन मींस ऑक्सिलरी इक्वेशन for given differential equation is क्या हो जाएगा, हेलो, क्या हो जाएगा, d³ माइनस 4d स्क्वायर प्लस 4d इक्वल्स टू 0। वो जो y के पहले वाले पार्ट में d के फॉर्म में लिखा, d मींस dy/dx, ये ऑक्सिलरी इक्वेशन हो गया। ऑक्सिलरी इक्वेशन ए भी लिखते हैं शॉर्टकट में, ऑक्सिलरी इक्वेशन फॉर गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज दिस। और इस डिफरेंशियल, बिकॉज इस इक्वेशन के राइट हैंड साइड 0 है तो कंप्लीट सॉल्यूशन मिलेगा, और ये इसको सॉल्व करना है, d की वैल्यू निकालना है और उसी बेस पे लिख देना है। सो टेल मी क्या होगा इसका फैक्टराइजेशन, वैल्यू रूट्स बताओ,
अभी देखो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे बिल्कुल जल्दी जल्दी होगा एकदम, बड़ा रूट्स पर निकालना है। क्या होना है बताओ? कोई ना कोई तो बैठ के पढ़ रहे होगे, कुछ लिखो और बताओ क्या होगा इसको सॉल्व करेंगे तो। हाउ मेनी रूट्स आर देयर? 3 रूट्स मिलना है, सॉल्व करेंगे ना, फैक्टराइजेशन होगा। 3 डिग्री का है तो 3 फैक्टर तो बनना ही है। एक तो सभी में डी है तो डी कॉमन ले लो, फिर क्या बचा? डी स्क्वायर माइनस 4d प्लस 4 इक्वल्स टू 0। सो ये तो एक तो डी हो गया फैक्टर, दूसरा क्या होना? ये तो दिख ही रहा है, क्या है ये बताओ, क्या है ये क्या है? हेलो, quadratic equations. वो तो है पर इसको फैक्टराइजेशन करने पे ध्यान देना है ज्यादा। इसका फैक्टराइजेशन तो इजी है ना एकदम, क्या है बताओ ना, इसीलिए तो पूछ रहा हूँ। Sir, d minus 2 d1. डी माइनस 2 का होल स्क्वायर है ना? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, बस वही तो बताना है, अभी तो यही काम है, बस फटाफट इसको फैक्टराइजेशन करना है, मेन काम वही है बस। क्योंकि वो जो मेन क्वेश्चन रहेगा ना सॉल्व करेंगे हम लोग। हाँ, ये क्या हो जाएगा? डी माइनस 2 का होल स्क्वायर है ना, ये यही तो 3 फैक्टर है ना, 3 फैक्टर होना है। डी माइनस 2 डी माइनस 2, डी की 3 वैल्यू निकालना है। डी की 3 वैल्यू क्या है? एक 0 है, एक 2 है, दूसरा भी 2 है। देखो 2 रूट्स इक्वल आया है यहाँ पर, है ना, यही तो डी माइनस 2 का होल स्क्वायर ही है ये। सो फैक्टराइजेशन जब इजीली हो गया मतलब क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ये ना क्या ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखा, ये मिला। सो कंप्लीट सॉल्यूशन, राइट हैंड साइड 0 है ना, तो कंप्लीट सॉल्यूशन। सो कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन, of given equation, the complete solution of given equation is, क्या लिखना है? m1 m2 m3, m1 m2 m3 दो रूट्स इक्वल है, m1 इक्वल टू m2 है। सो कांस्टेंट को कैसे लिख सकते हैं? इस पहला कांस्टेंट e टू द पावर 0x प्लस, अब ये दोनों इक्वल है, ये दोनों इक्वल है तो C1 हो गया, C2 प्लस C3 x e टू द पावर 2x। समझ में आया कि नहीं? ये दोनों रूट सेम है तो e टू द पावर 2x तो एक बार लिखना है, पर कांस्टेंट 2 आना चाहिए, तो उसके सामने जो कांस्टेंट लिखना है उसको लीनियर फैक्टर लिखना है। अगर 2 है, 3 रूट्स अगर इक्वल है तो यहाँ क्वाड्रेटिक फैक्टर लिखना है 3 कांस्टेंट के साथ। सो यहाँ पर दो इक्वल है तो C2 प्लस C3 x। इस सॉल्यूशन को ऐसे भी लिख सकते हैं, ये क्या है? e टू द पावर 0 इसमें C1 हो गया, इसमें क्या हो जाएगा? C1 प्लस C2x प्लस C3 e टू द पावर 2x। देखो मैंने ऐसे लिख दिया, ये भी सही है, ये भी सही है, वो भी सही है, किसी के साथ भी एक x रख के लिखना पड़ेगा। अगर ऐसा लिखा है तो यहाँ पर C2 करना है और यहाँ C3x करना है, वो भी राइट है, वो भी राइट है। ये इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, C1 प्लस C2x e टू द पावर 2x प्लस C3, ये भी सॉल्यूशन है। बिकॉज ये 2 के साथ 2 कांस्टेंट लिखना है, C1 प्लस C2x से हो गया, 2 कांस्टेंट यहाँ हो गया, और ये 0 के साथ एक रखना था, C3 इंटू e टू द पावर 0x, e टू द पावर 0x मींस वो 1 हो जाएगा। सो सॉल्यूशन यू कैन राइट लाइक दिस, आल्सो लाइक दिस, आल्सो लाइक दिस। ये सब सॉल्यूशन है, कंप्लीट सॉल्यूशन है किसका? गिवन इक्वेशन। राइट हैंड साइड 0 है। ओके, तो रूट्स निकालना ही पे डिपेंड करेगा, है ना। नाउ टेक फटाफट क्वेश्चन सॉल्व करना है, इजी इजी क्वेश्चन है ये सब। इसमें y मिसप्रिंट है, y नहीं है। सो इसका बताओ क्या होगा रूट्स। अभी रूट्स निकालना ही मेन है, 3rd डिग्री तक तो आता ही है ना। इसका रूट्स बताना है, फटाफट करो। फैक्टर बताओ, बस फैक्टर निकालना है और रूट्स निकालना है और डायरेक्ट सॉल्यूशन राइट करना है, कंप्लीट सॉल्यूशन। और 5-6 क्वेश्चन ऐसे लिया हूं अभी, है ना। दिस इज द कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ f dy इक्वल्स टू 0, राइट हैंड साइड हैविंग 0। सो यार ऑक्सिलरी इक्वेशन, यहां पर ना y मिसप्रिंट है ना, y भी है उसके आगे। सो हियर ऑक्सिलरी इक्वेशन इज
व्हाट डी क्यूब प्लस डी स्क्वायर प्लस 4d प्लस डी स्क्वायर प्लस 4d प्लस 4 इक्वल्स टू 0। ये है, इसमें y है क्वेश्चन में ना, वो पूरा फैक्टर के सामने y है, इसमें मिस प्रिंट है ना। सो ये है ऑक्सिलरी इक्वेशन। अब यहां से d की 3 वैल्यू आना है। सो डू इट भाई, करो तुम लोग, सॉल्व करके बताओ कैसे करेंगे। अभी वही तो क्यूबिक फैक्टर का पूछा था ना मैं, अभी जो यहाँ पर चल रहा था एक्स क्यू वाला, एक्स कांस्टेंट प्लस 2x प्लस 3x माइनस 1, इसको फैक्टराइज कैसे करते हैं। 3 फैक्टर आता है। एक जन बताओ, कोई ना कोई तो बताओ कि फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं, कहाँ से स्टार्ट करते हैं, क्या मेथड क्या रहता है। 3 फैक्टर तो बनना ही है, भले कॉम्प्लेक्स फैक्टर बने भले रियल फैक्टर। x का वैल्यू 1। नहीं, टेक्निक क्या होता है, ये टेक्निक सबको पता होना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल एक रूट को गेस करते हैं ना क्यूबिक में, गेस करेंगे। यस सर। 1 है क्या रूट, नहीं है, तो -1 है क्या, नहीं है, 2 -2 3 -3, इस टाइप से गेस करना है ना। हो सकता है 1 रूट हो जाए, नहीं तो -1 भी हो सकता है रूट हो जाए, एक को गेस करना पड़ता है। तो यहाँ गेस करो, एक क्या होगा, 1 होगा, मतलब होने का मतलब उस वैल्यू को यहाँ रखोगे तो यहाँ 0 आ जाए। ट्राई कहाँ से करते हैं, 1 फिर -1 2 फिर -2 3 फिर -3, इस टाइप से स्टार्ट करना है। सो 1 पे तो नहीं होगा सेटिस्फाई, बिकॉज सब प्लस प्लस में है, और -1 पे हो रहा है सेटिस्फाई। देखो d की जगह -1 रखो तो सेटिस्फाई होगा, लेफ्ट हैंड साइड 0 आएगा। तो गेस करना है ना, 1 -1 2 -1 3 -3 ऐसा करके गेस करना है। अब यहाँ पर -1, d की वैल्यू अगर -1 रख रहे हैं तो सेटिस्फाई हो जा रहा है, दैट मीन्स ये एक रूट है। ये अगर रूट है इसका मतलब ये एक फैक्टर है, ये इधर आएगा, d + 1 एक फैक्टर है, ये जो है एक फैक्टर है, यहाँ का एक फैक्टर है। कितने फैक्टर होना है, 3 फैक्टर होना है, 3 फैक्टर होना है, तो एक फैक्टर ये है। उसी फैक्टर में अभी इसको ब्रेक करना है, एंड देन उस फैक्टर को कॉमन लेंगे ना तो सेकंड डिग्री आएगा। सेकंड डिग्री को फिर मालूम है कैसे करना है, फिर 3 फैक्टर आएगा। ये है टेक्निक इसको सॉल्व करने का, सबसे इजी टेक्निक। ओके, आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर भी तो इसी टेक्निक से निकलता था ना। यहाँ पर क्या करना है, इसको एक फैक्टर बनाना है। ये सब बोलने की जरूरत नहीं है, बस आपने देख लिया फैक्टर बन रहा है, फटाक से चालू कर दिया सॉल्व करना। ये फैक्टर हमको बनाना है। फिर डी क्यू को क्या लिखना है, इस फैक्टर को बनानी है। डी क्यू को लिख सकते हैं d² d + 1 - d²। ये जितना जो लिखा हूं, ये जितना, ये क्या है, इसको सॉल्व करेगा डी क्यू मिलेगा। डी क्यू को हमने ऐसा लिखा, ये फैक्टर हमने बनाया, अपने से सेट किया कि ऐसा फैक्टर आना चाहिए करके। d² से जब इंटू करेंगे तो dq + d², और d² - d² खत्म, तो ये dq ही है, इसको ऐसा लिखा, और साथ में यहाँ पर प्लस d² है। और शॉर्ट में करना है इसको, ये प्रैक्टिस में लाना है। डायरेक्ट रूट भी फैक्टर भी लिख दोगे तो राइट है, बट होना चाहिए सही ना। तो यहाँ पर लिखना है ये -d², ये तो यहाँ का पार्ट है, प्लस d² प्लस 4d + 4 = 0। सो सी हियर क्या हो जाएगा, ये d² d + 1, ये तो खत्म हो गया, प्लस 4d, वहां से 4 कॉमन ले लो तो d + 1 आ जाएगा = 0। ओके, सो यहाँ पर d + 1 कॉमन आ गया और d² + 4 आ गया = 0। सो यू कैन राइट द वैल्यू ऑफ d = -1 एंड d² + 4 = 0 मींस क्या होगा, रूट, 2 रूट क्या होगा बताओ। ये सेकंड डिग्री फैक्टर इजी है ना। d² + 9 = 0, तो d की वैल्यू क्या होगा, और d² - 9 = 0, तो d की वैल्यू क्या होगा, क्या होना है यहाँ पर, d² - 9 = 0, तो d², 9 उधर जाएगा 3, तो यहाँ क्या लिखूं, यहाँ क्या लिखूं, टेल मी, ये तो आना चाहिए, फटाक से बोलो। इसमें नीचे +-3 आएगा, +-3 आएगा, है ना, +-3। यहाँ यहाँ भी कुछ आना है ना, माइनस साइन लगाओगे तो √9, तो i के साथ आएगा ना। ये क्या आना है, +-3 i होना है ना, +-3 i, बिकॉज 9 का ये होना है, तो √1 इंटू ये है ना 3i है ना, तो प्लस माइनस भी लगना है, स्क्वायर रूट लिया है करके।
तो प्लस माइनस 3i आएगा ना, प्लस माइनस 3i, वो कॉम्प्लेक्स रूट हो गया। सो यहां पर क्या आएगा वैल्यू, यू कैन राइट डायरेक्ट प्लस माइनस 2i, प्लस माइनस 2i आएगा ना, माइनस 4 रहेगा तो माइनस 4 का रूट है, सो क्या हो जाएगा प्लस माइनस 2i कॉम्प्लेक्स रूट। सो दीज आर द 3 रूट्स। अब ये हो गया कॉम्प्लेक्स, इसमें रियल पार्ट है 0, इमेजिनरी पार्ट है 2, सो यू कैन राइट सॉल्यूशन। सो कंप्लीट सॉल्यूशन, CS लिख रहा हूं ना, CS मतलब कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन इज, कैसे लिखना है अभी, y इक्वल्स टू, ये तो अलग से है, रियल है, अलग है, तो इसको क्या लिख सकते हो, एक कांस्टेंट के साथ e टू द पावर -1x, ये हो गया, ये इसके साथ वाला ये हो गया, और फिर इसके साथ वाला क्या लिखना है अभी, यहां पर e टू द पावर अल्फा x, सो e टू द पावर अल्फा में 0, e टू द पावर 0x, फिर ब्रैकेट में दो कांस्टेंट आएगा, दो रूट है यहां पर, तो c1 cos बीटा मींस 2x, c1 नॉट 1 यहां हो गया तो 2 यहां आएगा, 2 c3 sin 2x। ओके, सो ये हो गया सॉल्यूशन इसका, इसका वैल्यू 1 है, यू कैन राइट c1 e टू द पावर -x प्लस c2 cos 2x प्लस c3 sin 2x। ओके, ये कंप्लीट सॉल्यूशन है गिवन इक्वेशन। रूट्स निकाल के उसी बेस पे लिखना है, ये कॉम्प्लेक्स था तो ऐसे रूट लिखते हैं, e टू द पावर अल्फा x एंड देन कांस्टेंट cos बीटा, कांस्टेंट sin बीटा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखो, इसका बताओ तुम लोग रूट। फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड द रूट, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, d2y/dx² + 4dy/dx + 29y = 0 गिवन दैट, ये कंडीशन दिया हुआ है, इस कंडीशन का यूज करके ना कांस्टेंट की वैल्यू निकालेंगे फाइनली। जैसे यहाँ पर कांस्टेंट आता है ना c1 c2 c3, ये क्यूबिक है क्या, ये स्क्वायर क्वाड्रेटिक है, दो रहेगा, दो कांस्टेंट रहेगा, दोनों कांस्टेंट की वैल्यू निकालना पड़ेगा। ओके, फाइनली तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन हो जाएगा अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन। कंडीशन क्या दिया है, y की वैल्यू x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 0 तो dy/dx की वैल्यू 15 है। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल सॉल्यूशन निकालते हैं, उसके लिए ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखो एंड देन फैक्टराइज इट, फैक्टराइजेशन करके बताओ। हेलो, करना है ना क्वेश्चन, अभी कितना टाइम हुआ है, बहुत समय है अभी, 1 आवर हुआ है, बस केवल 1 आवर हुआ है ना, और कम से कम 1.5 घंटा तो पढ़ेंगे ना रोज। अब 17 के बाद 17 से पॉसिबिलिटी हो रही है कॉलेज की, देखते हैं क्या होता है ना, तब तक ये यूनिट कम से कम 2.5 यूनिट्स तो कवर हो जाएगा हम लोगों का, है ना। सो राइट, कंडीशन पे डिपेंड करेगा कि आगे क्या होना है। सो ऑक्सिलरी इक्वेशन हियर, ऑक्सिलरी इक्वेशन इज, क्या होगा ऑक्सिलरी इक्वेशन, वो जो d2y/dx² में सो d स्क्वायर, सो d स्क्वायर प्लस 4d प्लस 29y मीन्स 29 इक्वल्स टू 0, ऑक्सिलरी इक्वेशन हो गया। अब इसको सॉल्व करना है, चलो फैक्टराइजेशन करना है, देखो 29 है तो उसको फैक्टराइजेशन इजीली तो होना नहीं है, हमको किस पे जाना पड़ेगा, कौन से रूट, कौन से फॉर्मूला पे, -b + √b² - 4c पे जाना पड़ेगा, ठीक है ना। सो क्या होगा, b = -b + रूट b² -4 का, तो -b है, b² मीन्स 4 का स्क्वायर 16 माइनस 4ac, 4 into a means 1, 4 into 1, c means 29, 4 into 29, 4 into 29 कितना होता है, 4 into 29 116 ना,
हेलो 116 है क्या? यस सर, यस सर। ये लिख दिया हमने b माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4 बिकॉज ये 29 ऐसा है कि वो तो फैक्टराइजेशन इनटू में आना नहीं है, इसलिए सीधा इसी फॉर्मूला का यूज किया। 2 into a मींस 2। ओके, अब तो दिख भी रहा है क्या हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स रूट्स आना है और 16 माइनस हो जाएगा तो 100 बचेगा, माइनस में 100 है, 100 का तो 10 है और माइनस में है तो i आ जाएगा, सो 10 हो जाएगा। 10 हो जाएगा तो 10 में से दो दो ऊपर नीचे से नीचे निकल जाएगा तो यहाँ पर 2 बचेगा, यहाँ 5 बचेगा, बस क्या हो गया वैल्यू बताओ, b इक्वल्स टू माइनस 2 प्लस माइनस 5i, यही है क्या? हेलो, वैल्यू यही आना है ना? यस माइनस 2 प्लस माइनस 5 है, 5 मीन्स 100 होगा, 100 का 10, 10 में से फिर 2 निकल गया तो 5, ये होगा माइनस 2 प्लस माइनस 5, कॉम्प्लेक्स रूट्स पेयर में। सो कंप्लीट सॉल्यूशन इज गिवन y, कंप्लीट सॉल्यूशन क्या लिखना है, ये y एंड x में है ना, सो y इक्वल्स टू e टू द पावर अल्फा x, ये अल्फा की जगह माइनस 2 है, e टू द पावर माइनस 2x, e टू द पावर अल्फा x, फिर ब्रैकेट में आएगा पहला कांस्टेंट c1, फिर cos बीटा, बीटा मींस 5, cos 5x प्लस c2 sin 5x, ये हो गया। दिस इज द कंप्लीट सॉल्यूशन। नाउ जो कंडीशन है इसका यूज करना है, देयर आर टू कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन इज व्हाट, when x equal to 0 y equal to 0, and second condition is what, when x equal to 0 dy by dx equal to 50। ये दो कंडीशन है तो दोनों कांस्टेंट की वैल्यू अब निकल आएगा। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। अब हमको dy by dx भी चाहिए, देखो dy by dx भी दिया हुआ है यहाँ पर 15, सो dy by dx चाहिए तो इसका डिफरेंशिएट करना है, इसको डिफरेंशिएट करना है, डिफरेंशिएट करके रख लेते हैं ना। सो dy by dx x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होना है, इसका डिफरेंशिएशन होना है। सो यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, मींस प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन, ये फर्स्ट फंक्शन ये सेकंड फंक्शन। तो फिर डिफरेंशिएट करते हैं, यहाँ क्या आना है, अगर इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो माइनस 2 e टू द पावर माइनस 2x, इसको एज इट इज रखना है, c1 cos 5x प्लस c2 sin 5x, ये फर्स्ट का डिफरेंशिएशन हुआ और ये एज इट इज था। नाउ प्लस फर्स्ट एज इट इज रहेगा e टू द पावर माइनस 2x एंड डिफरेंशिएशन इसका होना है, तो ये cos का क्या डिफरेंशिएशन है माइनस, और ये 5 है तो माइनस 5c1 sin 5x, माइनस 5c1 sin 5x, ये हुआ इसका डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में, और सिमिलरली x के रेस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन करना है 5c2 cos 5x, 5c2 cos 5x, क्लियर है? ये हो गया dy by dx, हमने डिफरेंशिएट किया इसको, दिस इज इक्वेशन 2। नाउ वी कैन अप्लाई द कंडीशन, गिवन कंडीशन, गिवन कंडीशन में अप्लाई करना है, ये अपना सॉल्यूशन है, फाइनल सॉल्यूशन ये है। अब क्या करना है, इसी दो में कंडीशन यूज करना है और c1 c2 की वैल्यू निकाल के इसी में रख देना है। ओके, सो नाउ x इक्वल्स टू 0, y इक्वल्स टू 0, x इक्वल टू 0 and y इक्वल्स टू 0 in 1। now put x equal to 0, y equal to 0 in 1, फर्स्ट इक्वेशन में रखा, फर्स्ट में we get क्या मिलेगा, यहाँ 0 आएगा, y की वैल्यू, x की वैल्यू जहाँ जाए x आएगा वहाँ 0 आएगा, सो 0 इक्वल्स टू ये 0 हो गया, यहाँ 0 रखना है, e टू द पावर 0 1, e टू द पावर 0 1 हो जाएगा, ये 1 ब्रैकेट में c1 cos x की जगह 0, cos 0 1 c1 प्लस 0, यही आएगा ना, क्योंकि यहाँ sin 0 0 हो जाएगा, यहाँ पर 0 है, यहाँ 0 करोगे 1 आ जाएगा, तो 0 इक्वल टू यहाँ पर 1 c1, ये 1 हो जाएगा और वो 0 हो जाएगा, दैट इज c1 इक्वल्स टू 0 एंड
put x equals to 0 and dy upon dx equals to 15 into ये सेकंड वाले में तो लिखा हो ना, चलो तुम लोग बताओ C2 की वैल्यू क्या आएगा। वैल्यू रखना है, x की जगह 0 रखना है, dy by dx की जगह 15 रखना है, इधर 15 आएगा, इधर 15, ये 15 इक्वल्स टू, अब x की जगह पे 0 रखो, तो सॉल्व करो, ऊपर ये C1 0 है तो C2 की वैल्यू क्या आएगा, टेल मी, कोई ना कोई सॉल्व करो, बताओ। dy by dx की जगह 15 है एंड जितने भी x है हर जगह पे 0 है, सो और उधर C1 0, C2 इक्वल्स टू 3 है ना, ये देख लेते हैं, -2 ये हो गया, 1 हो गया, ये हो गया, C1 हो गया, तो ये 0 है, तो ये C1 हो जाएगा, यहाँ पर 0 हो जाएगा, प्लस 0 हो जाएगा, वहाँ पर 1 हो जाएगा, फिर वहाँ पर साइन है तो 0 हो जाएगा, फिर वहाँ पर 5 आ जाएगा और C2 आ जाएगा, यही है ना। C1 0 है, ऊपर वाले में दिया है C1 0 है, सो फाइनली ये सब खत्म। यहाँ क्या बचा, 5C2 इक्वल टू 15, दैट मीन्स इम्प्लाइज C2 इक्वल्स टू 3। ओके, सो C2 3 आ गया। तो सॉल्यूशन क्या होगा, अभी ये जो कांस्टेंट की वैल्यू था, जो हमने आर्बिट्री कांस्टेंट था, वही कांस्टेंट इसमें रख देना है। सो फाइनल सॉल्यूशन इज, सो फाइनल solution, you can say particular solution because particularly condition लगाया तो constant आ गया, so final solution is, अब ये जो जहां जहां C1 C2 है वहां वैल्यू रख देना है, यहाँ पर आ जाएगा 0 और यहाँ पर आ जाएगा क्या 3, बस दिस इज द फाइनल सॉल्यूशन। सो इसको सॉल्व कर लेना है, y इक्वल्स टू e⁻²x और ये तो 0 हो जाएगा इंटू 3 sin 5x, that is you can write like this, y equals to 3 e⁻²x sin 5x, ये है फाइनल सॉल्यूशन। समझे, ये जो है कंडीशन जो रहता है ना, these are the called, ये तो इनिशियल कंडीशन है, what at x equal to 0 पे था, बाउंड्री कंडीशन भी होता है, सो बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम, इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम ना इसी से रिलेटेड होता है। ओके, नाउ एक क्वेश्चन और लेते हैं, अब इसका बताओ, तुम लोग रूट्स बताते जाओ मेरे को, है ना, इसका सॉल्यूशन करना है, सॉल्व करना है, मतलब वो रूट्स से ही मतलब है मेन, है ना। तो पहला वाला तो ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला लगना है पहले वाले में, यू नो क्या होता है, -1 का क्यूबिक रूट ऑफ -1 वही तो है ए क्यू प्लस बी क्यू, एंड सेकेंड d power 4 - 4। So both are very very simple questions, just ये ना दोनों क्वेश्चन CSB एग्जाम में आया है, दोनों क्वेश्चन, ये दोनों क्वेश्चन आया है, BS ग्रेवाल में एक्सरसाइज में है, यू कैन सी इट, ग्रेवाल की जो बुक है ना उसमें एक्सरसाइज में दिया है, ये दोनों क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये फर्स्ट क्वेश्चन का क्या होगा, ये है auxiliary equation is क्या बनना है, dq plus 1 equals to 0, dq plus 1 equals to 0, ये मतलब aq plus bq का फॉर्मूला, aq plus bq, यू नो a plus b इंटू क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है यहां पर बताओ, क्या लिखूं, a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर। हाँ, यहाँ माइनस आना है, यहाँ ये, यही ना, यस सर, कि प्लस आता है, नहीं ना, माइनस आता है, माइनस, ओके, और यहाँ पर जब माइनस लेते हैं तो यहाँ प्लस आता है और यहाँ माइनस आता है ना, यस सर, ओके, ये वाला फॉर्मूला है, तो इसको फैक्टराइज करना है, इसमें क्या लिखना है, d + 1 इंटू डी स्क्वायर, मतलब पहला वाला डी स्क्वायर माइनस d into 1 minus d plus b square 1 square 1 equals to 0. So from here we can get 3 roots,
है ना, 3 रूट्स मिल जाएगा यहाँ से। ये क्या मिलेगा, d इक्वल टू -1 मिल गया एक, उसका फैक्टराइजेशन नहीं होता है ना, तो वो फॉर्मूला लगाना है माइनस बी स्क्वायर वाला। सो क्या हो जाएगा ये 1 प्लस माइनस रूट, लिख देते हैं ना डायरेक्ट, b की वैल्यू -1 है, सो b की वैल्यू अगर -1 है तो माइनस माइनस प्लस 1 हो गया, प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर मीन्स 1 माइनस 4ac माइनस 4 अपॉन 2a 2 इक्वल्स टू 0, ये 0 नॉट 0 मीन्स ये इस टाइप से लिखना है, ठीक है। तो रूट्स क्या हो गए, तीनों रूट्स, d इक्वल्स टू -1 और यहाँ पर 1/2 प्लस माइनस रूट 3/2i, यही तो -1 का क्यूबिक रूट, -1 का क्यूबिक रूट मीन्स x³ प्लस 1 इक्वल्स टू 0 होता है ना, तो x³ इक्वल्स टू -1, सो x इक्वल्स टू -1 का 1/3, ये इसकी जो वैल्यू होता है ये तीनों वैल्यू होता है। इसी को ये आप पढ़ के आए होंगे, एक 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू 1 इस टाइप का, ये +1 का होता है, ये +1 का क्यूबिक रूट ये होता है, इसी से रिलेटेड है। यहाँ पर माइनस माइनस प्लस कर देंगे तो हो जाएगा, मतलब यहाँ प्लस कर देंगे, यहाँ माइनस प्लस कर देंगे तो ये आ जाता है। ओके, सो दीज आर द रूट्स, 3 रूट्स आर दिस। सो सॉल्यूशन क्या होगा, जैसे कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन लिख के छोड़ देते हैं, क्या होगा, सो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन इज, कंप्लीट सॉल्यूशन इज y इक्वल्स टू पहला कांस्टेंट e टू द पावर -1x, ये हो गया फर्स्ट कांस्टेंट, ये सेकंड दोनों क्या है, कॉम्प्लेक्स रूट है, सो प्लस करना है, फिर e टू द पावर α(x) मींस 1/2x मींस x/2, फिर कांस्टेंट, फिर दूसरा कांस्टेंट आएगा cos ऑफ √3/2, cos ऑफ √3/2x प्लस c3 sin ऑफ √3/2x, दिस इज द सॉल्यूशन, ठीक है। अब सेकंड वाले का बताओ क्या होना है, सेकंड वाले का क्या है, d पावर 4 -4 इक्वल्स टू 0, क्लियर है। सेकंड d पावर 4 -4, ये सेकंड के लिए, सो व्हाट विल बी द रूट्स, 4 रूट हैं, क्या है, एकदम इजी है ये रूट, चारों रूट निकालना बिल्कुल इजी है। इतना तो तुम लोग करो है ना, सॉल्व करो और बताओ मेरे को। फिफ्टीन पे क्लास स्टार्ट हुआ था ना, अभी टाइम है, आराम से वह 1.5 घंटा मानता हूँ मैं ना क्लास का, 2 घंटा बहुत लंबा हो जाता है। सो टेल मी क्या होगा आंसर, सब लोग ट्राई तो करो, हेलो कर रहे हो ना, हाँ हाँ नरेश, हाँ हेलो टेल मी, हाँ हाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यू नो ना फॉर्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये होता है ना, ये फॉर्मूला यूज करो, डी स्क्वायर स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, बी स्क्वायर स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर इक्वल्स टू 0, सो यू कैन राइट व्हाट, डी स्क्वायर माइनस 2 एंड डी स्क्वायर प्लस 2 इक्वल्स टू 0, है ना, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, सो यार डी पावर 4 मींस डी स्क्वायर स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर 4 को लिखा, सो ये दो फैक्टर मिल गया। यहां से क्या होना है, रूट डी की वैल्यू उधर 2 जाएगा, प्लस माइनस रूट 2 प्लस माइनस रूट 2, और यहां से क्या होना है, प्लस माइनस रूट 2, कुछ आएगा क्या, आई आ जाएगा ना, यहाँ माइनस के साथ था, ये कॉम्प्लेक्स हो गया, ये रियल है, रियल है मींस आई नहीं है ना उसमें, सो उसी के फॉर्मेट में सॉल्यूशन लिख सकते हैं, अभी हो गया ना, अब तो लिख सकते हैं। सो द कंप्लीट सॉल्यूशन इज गिवन बाय, क्या होना है, y इक्वल्स टू 4 कांस्टेंट आना है, इसमें 2 आएगा, इसमें 2 आएगा,
तो इसको लिखने का जो है C1 e टू द पावर रूट 2x, C2 e टू द पावर माइनस रूट 2x, ये रियल में है तो इसलिए ऐसा लिखा, रियल में डिस्टिंक्ट है, प्लस रूट 2 माइनस रूट 2, ये दो, और ये यहाँ पर दो कांस्टेंट आना है, e टू द पावर एक अल्फा x लिखना है, अल्फा की वैल्यू 0 है, so e टू द पावर 0x, ब्रैकेट में फिर दो कांस्टेंट आएगा, एक ये C1 C2 हो गया, C3 और यहाँ पर क्या होना है, cos ऑफ रूट 2x, cos ऑफ रूट 2x प्लस C4 sin ऑफ रूट 2x. सो दिस इज द सॉल्यूशन. ये तो बाद में 1 लिख देना है, नेक्स्ट लाइन में इसको 1 कर देना है. ओके, ये सॉल्यूशन होगा C1 C2 C3 C4 बिकॉज फोर्थ ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, तो 4 कांस्टेंट होना चाहिए. दिस इज कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन, राइट हैंड साइड हैविंग 0. ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक जो है ना आता है हम लोगों का पर्टिकुलर इंटीग्रल. पर्टिकुलर इंटीग्रल से रिलेटेड क्वेश्चंस आ रहे हैं मेरे पास भी. लेट्स ओके, सो 15 मिनट और क्लास ले ले. हेलो कि बंद करें, तुम लोग बताओ. नेक्स्ट टॉपिक न्यू टॉपिक मींस इसके आगे का है. इफ यू आर एग्री देन हाँ करें, कंटिन्यू करें. हेलो, यस सर. गुड. चलो अभी कम से कम 15 मिनट पढ़ लेते हैं ना. तो नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट. ये हमने अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा है इसको, अभी हम लोगों ने पढ़ा है कि एफ डी वाई इक्वल्स टू 0. इफ एफ डी वाई इक्वल्स टू 0 देन इट्स सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं, कंप्लीट सॉल्यूशन होता है ना. ये पढ़े हैं क्या, एफ डी वाई इक्वल्स टू 0, इसको सॉल्व किए. नाउ सपोज nth order linear differential equation with constant coefficient. अभी constant coefficient ही है ना. nth order is, क्या लिखते हैं इसको जनरली, एफ डी वाई इक्वल्स टू एक्स. आई थिंक अब ये इसका ये जो सिंबॉलिक मीनिंग है, यू नो ये सिंबॉलिक मीनिंग क्या है. ये जो एफ डी है ये एक पॉलिनोमियल है इंडीड, और ये वाई डिपेंडेंट वेरिएबल, एक्स में भी फंक्शन ऑफ एक्स, ये फंक्शन ऑफ एक्स है. इसके जो कोएफिशिएंट्स है वो सब कांस्टेंट है. सो nth ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट इज दिस. इसका सॉल्यूशन निकालना है. ठीक है. सो इट्स complete solution is given by, अभी इसका सॉल्यूशन की बात कर रहा हूं, इसका कंप्लीट सॉल्यूशन. इट्स कंप्लीट सॉल्यूशन इज गिवन बाय y इक्वल्स टू CF प्लस PI. वो थ्योरेटिकल पोर्शन जो है, डेरिवेशन वो सब जरूरत नहीं है कुछ भी, ये समझ लेना है. इसका जो सॉल्यूशन है, या राइट हैंड साइड 0 नहीं है, तो इसका सॉल्यूशन ये होता है. पहले कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन लिखना है, फिर पर्टिकुलर इंटीग्रल लिखना. पूरे यूनिट में पर्टिकुलर इंटीग्रल को ही निकालना सिखाया है. पहले तो हम लोग ये सीख लिए. अभी जो करके आए थे ना, अभी क्या किए थे, यहाँ पर 0 लिए थे, ये हुआ था, इसका सॉल्यूशन इसका कंप्लीट सॉल्यूशन निकाले थे, जिसको हम इसके लिए क्या बोलेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन. इसका जो कंप्लीट सॉल्यूशन होता है वही होता है इसके लिए कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन. ये दिस इज कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन. इसमें कांस्टेंट होता है, इसमें कांस्टेंट नहीं होता. पर्टिकुलर इंटीग्रल मींस इसका एक पर्टिकुलर इंटीग्रल है. एक इंटीग्रल इसमें जो वो होता है ना, प्रिमिटिव्स होता है, जो इस y की कुछ वैल्यू है जो इसमें रखो तो ये सेटिस्फाई हो जाता है विथ x, जिसमें कांस्टेंट नहीं होता है. दैट इज कॉल्ड पर्टिकुलर इंटीग्रल. उसी पार्ट को निकालना है. उसमें डिफरेंट टाइप का मेथड है. ठीक है, 7-8 मेथड है, बस उसको वही तो मेन है, उसको सीखना है. ये PI निकालना है. CF मींस जो अभी कर रहे थे, अभी जितने सारे क्वेश्चन सॉल्व किए वो सब CF है. CF किसके लिए होता है, इसके लिए होता है. और वही CF इसके लिए क्या होता है, राइट हैंडेड जीरो के लिए कंप्लीट सॉल्यूशन होता है. क्लियर. तो दिस इज द कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ दिस. अब PI निकालने का जो मेथड है, 1 by 1 वी हैव टू ट्राई टू फाइंड द PI. सो PI निकालने का जो मेथड है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल सिंपल 2 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. इधर
पी आई वेयर, यहां लिखना है वेयर सी एफ दैट इज कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन where CF, see complementary function is complete solution of FD y equals to 0, और ये पता है हमको सॉल्व करना, ठीक है। CF and PI is particular इंटीग्रल ऑफ इक्वेशन 1, इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल, इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल का मीनिंग है तो पर्टिकुलर दैट इज कांस्टेंट नहीं होगा, उसमें y का एक वैल्यू है जो इसमें रखते हैं तो ये सेटिस्फाई हो जाता है, वही चीज निकालना है। एंड पर्टिकुलर इंटीग्रल इज गिवन बाय, पर्टिकुलर इंटीग्रल इज गिवन बाय, ये पर्टिकुलर इंटीग्रल की जो वैल्यू है उसको राइट कैसे करते हैं, पर्टिकुलर इंटीग्रल इज इक्वल्स टू, यहां से 1/FD लिखना है नीचे। अब ये जो FD है, FD एज ए पॉलिनोमियल, सेकंड डिग्री, थर्ड डिग्री, फोर्थ डिग्री, लीनियर डिग्री में से 1 डिग्री का पॉलिनोमियल होगा, ये फैक्टराइजेशन है। सो 1/FD, ये जो भी फैक्टराइजेशन है, जैसे पार्शियल फ्रैक्शन वगैरह करते हैं उसी टाइप के इसको फैक्टराइज करना टारगेट रहेगा। सो पर्टिकुलर इंटीग्रल कैसे निकालते हैं, 1/FD, सामने रहेगा ये फंक्शन x, दिस इज द वैल्यू ऑफ पर्टिकुलर इंटीग्रल। पर्टिकुलर इंटीग्रल की वैल्यू निकालना है, PI इक्वल्स टू 1/FD होगा। ये एक फैक्टर है, ये ऑपरेटर है, ये किसके ऊपर अप्लाई होना है, x के ऊपर अप्लाई होना है, और x के डिफरेंट फॉर्म पे इसके मेथड अलग अलग टाइप से होते हैं। अब इसका फैक्टराइजेशन तो पहले हम कर ही लेते हैं, किसमें, जब ये निकालते हैं कंप्लीट सॉल्यूशन, जब निकालते हैं वो उसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, उस टाइम तो इसका फैक्टराइजेशन वगैरह हो जाता है, तभी तो करके आगे बढ़ते हैं। तो फैक्टराइजेशन हो जाएगा तो यू कैन डू इट्स पार्शियल फ्रैक्शन आल्सो, और पार्शियल फ्रैक्शन नहीं करेंगे तो फिर अलग अलग मेथड कैसे आगे बढ़ेंगे, वैल्यू कैसे मिलेगा। सो FD क्या है, 1 डिग्री का हो सकता है, 2 डिग्री का हो, मतलब अब डिग्री क्या बोल रहा हूँ, डिग्री मींस डिफरेंशियल इक्वेशन का डिग्री नहीं, ये D पे डिग्री मींस सेकंड डिग्री पॉलिनोमियल, थर्ड डिग्री पॉलिनोमियल, फोर्थ डिग्री पॉलिनोमियल, कौन सा पॉलिनोमियल है, सो उसको देखना है। और FD के फॉर्मेट पे डिपेंड करेगा, मेन फॉर्मेट तो फंक्शन का है। अब सपोज FD की वैल्यू ओनली D है, मतलब FD क्या है, फंक्शन ऑफ D है, फंक्शन ऑफ D, इसकी वैल्यू D भी हो सकता है, सिंगल D, या इसकी वैल्यू क्या हो सकता है, कुछ भी कॉम्बिनेशन, D+1 भी हो सकता है, D-1 भी हो सकता है, D2+2 भी हो सकता है, और फैक्टराइजेशन है, जैसा भी FD की वैल्यू है ना। 1/1 सी फॉर्मूला कैसे बनता है यहाँ पर, है ना अभी तो। नाउ आवर टारगेट इज व्हाट, फाइंडिंग PI, बिकॉज इस क्वेश्चन को सॉल्व, इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमको चाहिए CF, जो पहले मेथड था वही CF है, PI निकालना है अभी। जैसे दोनों निकल जाएगा, दोनों को सम कर देंगे, दिस इज कंप्लीट सॉल्यूशन हो जाएगा इक्वेशन का। ओके, नाउ फॉर PI, अब PI निकालना मेन टारगेट है, इसी में 2-3 क्लास लगना है ना। PI कैसे निकलेगा, बस PI से रिलेटेड ही है पूरा फुल डिफरेंशियल इक्वेशन का ये हायर ऑर्डर वाला है पार्ट है, एंड उसके बाद कुछ सीरीज सॉल्यूशन एक पार्ट है जिसमें बेसल्स फंक्शन और लीजेंड्री फंक्शन आता है। सो हियर नाउ अब समझना है कि कैसे सॉल्व करते हैं, फॉर्मूला को समझना है, उसके बाद तो क्वेश्चन सॉल्व करना है। नाउ इफ FD इक्वल्स टू, सपोज ये D है, FD की वैल्यू D है, तो PI क्या हो जाएगा, 1/FD x, मींस क्या हो गया, 1/dx। अब ये जो D होता है, D क्या है, d/dx, डिफरेंशियल ऑपरेटर है। इस डिफरेंशियल ऑपरेटर का इनवर्स क्या होता है, हेलो, डिफरेंशियल ऑपरेटर का इनवर्स जो हम डिफाइन करते हैं क्या होता है, डिफरेंशियल ऑपरेटर का इनवर्स
साइन का डेरिवेटिव cos x है, तो cos का इंटीग्रल क्या होता है? हेलो हेलो, रिप्लाई मी, हेलो। Sin x. तुम लोग आगे पढ़ना है बोल के फिर शांत हो गए है ना। ये बोल रहा हूं कि डिफरेंशियल ऑपरेटर का इनवर्स क्या होगा? इंटीग्रेशन होगा ना। साइन का डिफरेंशिएशन cos x है, cos का इंटीग्रेशन क्या होता है? sin x होता है। Sin x. तो 1/d क्या होना चाहिए? इंटीग्रेशन होना चाहिए। सो 1/d मींस इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन ऑफ x dx, तो x के रेस्पेक्ट में तो सॉल्व हो जाएगा। ये फंक्शन ऑफ x है, और x नहीं भी, फंक्शन ऑफ x नहीं है, कांस्टेंट भी है तो भी इंटीग्रेशन हो जाएगा। जीरो है तो करना ही नहीं है पी, और अगर ये कांस्टेंट है तो भी इंटीग्रेशन हो जाएगा, और अगर फंक्शन ऑफ x है तो भी इंटीग्रेशन हो जाएगा। सो इफ अगर f d की जगह पे अगर d है मींस 1/d अगर है, 1/d x मींस इंटीग्रेशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x, ये 1/d है। सिंगल d है, लीनियर फैक्टर है, बट इसमें कांस्टेंट टर्म भी नहीं है ना। अब 1 by 1 एक एक करके देखना है ना कि कांस्टेंट टर्म भी हो जाए तो फिर क्या हो जाएगा लीनियर फैक्टर में। लीनियर फैक्टर इक्वल राइट ना, ये यही तो होता है क्या लीनियर फैक्टर, यही लीनियर फैक्टर होता है। हम तो d से रिलेटेड बात कर रहे हैं ना यहाँ पर, d से रिलेटेड, तो क्या हो जाएगा ये ad प्लस b, अपना तो वेरिएबल यहाँ पर अननोन क्या है, d है, तो ad प्लस b इस टाइप का फैक्टर हो सकता है। ये फैक्टर अगर है तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये से डिवाइड कर देंगे d प्लस बी बाई ए, इस टाइप का फैक्टर हो जाएगा। फाइनली क्या हो जाएगा d प्लस समथिंग और d प्लस समथिंग और d माइनस समथिंग, मतलब या तो d प्लस अल्फा लिखो या d माइनस अल्फा लिखो, इसी टाइप का फैक्टर होगा। ये कांस्टेंट है लीनियर फैक्टर। लीनियर फैक्टर को किसी भी टाइप का, अगर ये 2d प्लस 3 दिया हुआ है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, d प्लस 2 कॉमन ले लो, d प्लस 3/2 मतलब d प्लस समथिंग, अगर यहाँ माइनस साइन है तो माइनस आ जाएगा, तो d प्लस अल्फा d माइनस अल्फा इस फॉर्म में लिख सकते हैं। सो लीनियर फैक्टर कैन बी रिटन एज आइदर प्लस में या माइनस में। अगर लीनियर फैक्टर है तो फिर इस पी की वैल्यू क्या होगा, so इसको भी लिखने का है जो वो है एकदम सिंपल है, फॉर्मूला याद रखना है बिकॉज फॉर्मूला आने वाला है 8-10 फॉर्मूला। पी आई इक्वल्स टू 1/d प्लस अल्फा लिखो, अब माइनस अल्फा से रिलेटेड हम फॉर्मूला बनाते लिखते हैं जनरली 1/d माइनस अल्फा ए बी सी कुछ भी कांस्टेंट ले लो, 1/d माइनस अल्फा लिख दिया। ये fd की वैल्यू है, मतलब fd की वैल्यू, ये fd की जो अगर वैल्यू अगर ये आए d माइनस अल्फा है तो ऐसा, और ये भी नहीं है तो फैक्टर है, कोई भी एक फैक्टर है, बिकॉज बहुत सारे फैक्टर होंगे तो एक एक फैक्टर लेके भी सॉल्व कर सकते हैं। सो 1/d माइनस अल्फा अगर फैक्टर है, सामने क्या रहेगा, x रहेगा, इसकी जो वैल्यू होती है e टू द पावर अल्फा x इंटीग्रेशन x e टू द पावर माइनस अल्फा x dx। सो रिमेंबर दिस फार्मूला, ये फार्मूला को याद रखना है, ये सॉल्व हो जाता है, ये भी इजी है ना। डिफरेंशियल इक्वेशन बना के इसको सॉल्व करेंगे ना तो ऐसा फार्मूला बनता है। सो 1/d माइनस अल्फा x फंक्शन ऑफ x, दिस फंक्शन ऑफ x या तो कांस्टेंट यहाँ रहेगा, यहाँ पर d माइनस अल्फा है, सो e टू द पावर अल्फा x e टू द पावर माइनस अल्फा x और x dx। सो इस टाइप का अगर फैक्टर आया, जैसे क्या होता है 1/fd रहता है, अब यहाँ पर हमने 2-3 फैक्टर बना दिया और यहाँ पर x है, 1/1 फैक्टर, x को एक साथ लेकर सॉल्व कर लो, जो मिला उसके साथ फिर ये फैक्टर लेकर सॉल्व कर लो, फिर ये फैक्टर लेकर सॉल्व कर लो, हो जाएगा। बट ये लेंदी होता है, इसलिए स्पेशल टाइप ऑफ फॉर्मूला बनाया है इसमें। सो जनरल फॉर्मूला, दिस इज जनरल फॉर्मूला, बिकॉज 1/fd रहेगा, इसका फैक्टराइजेशन पहले से हम करके आ चुके हैं, तो फैक्टराइजेशन है तो 1/, फैक्टर इनटू सामने x है तो इसको तो सॉल्व इस फॉर्मूला से हो जाएगा। दिस इज जनरल मेथड, ये जनरल मेथड है। फैक्टर आएगा तो आएगा, फैक्टर तो रहना ही रहना है क्योंकि ये फैक्टराइजेशन पहले हो चुका है, तो ये फैक्टर आएगा। और एक चीज है 1/, फैक्टर है, इसको पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक कर सकते हैं। इसको पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक करोगे तो समथिंग अपन फैक्टर प्लस समथिंग अपन फैक्टर प्लस समथिंग अपन फैक्टर आएगा, सभी में x ला दो, सॉल्व हो जाएगा। तो पार्शियल फ्रैक्शन में भी इसको ब्रेक कर सकते हैं इसको, और इनटू में भी रखेंगे तो इनटू में भी वो एक एक करके फैक्टर लेके भी सॉल्व कर सकते हैं। ये सब डिफरेंट टाइप ऑफ टेक्निक, दिस इज जनरल मेथड। कोई भी मेथड पता नहीं है तो इसको करेंगे तो हो जाएगा, बट ये लेंदी हो जाता है। सो
टू फार्मूला आर देयर, एक फार्मूला ये हो गया और एक फार्मूला ये हो गया. ओके, इस पर्टिकुलर, बिकॉज ये जो फार्मूला अभी लिखा है ना, ये फार्मूला किस टाइप का है, ये जो फार्मूला है ये जनरल रूल है दोनों. अभी हम क्या बोल रहे थे कि इसका पर्टिकुलर फॉर्मेट देखना है. पर्टिकुलर फॉर्मेट में एक्स के फॉर्मेट, एक्स किस टाइप का है तो एक्स के फॉर्मेट पर डिपेंड करेगा. सो फर्स्ट रूल, आज एक दो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, एक या दो क्वेश्चन, तो उसके लिए ना ट्राई कर दी. ये जो दो फॉर्मूला बताया अभी, जस्ट रिमेंबर इट, बिकॉज ये जनरल फॉर्मूला है, कभी भी कहीं भी यूज हो सकता है ना. अब जो है स्पेशल फॉर्मेट फॉर एक्स, फर्स्ट 1, not case, you can say as a format, means the value of x. If x equals to, जो x है function of x है, function of x means if x equals to e to the power ax, then नहीं, x का ये फंक्शन ऑफ x है और e to the power constant into x, अगर इस फॉर्मेट का है तो pi की वैल्यू क्या होना है. क्लियर है. 1 अपॉन एफ डी e to the power ax. मैं ना डायरेक्ट फॉर्मूला लिख रहा हूं बिकॉज डेरिवेशन इज नॉट नेसेसरी. सो फॉर्मूला समझ में आ जाना चाहिए. ये कांस्टेंट है, मींस x का अगर फॉर्मेट है, जैसे e to the power 2x लिखा हुआ है तो a इक्वल टू 2. सो इस स्पेशल फॉर्मेट में अगर है x की वैल्यू तो 1 अपॉन एफ डी x के जगह पे क्या लिखा है, e to the power ax. सो इसकी जो वैल्यू होता है बिल्कुल सिंपल हो जाता है. इस a को इस d के जगह पे रख देना है, सॉल्व हो गया, खत्म, सॉल्व हो गया. बट एफ ए की वैल्यू क्या नहीं होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए. जस्ट लाइक दिस, सपोज e to the power 2x है, 1 अपॉन d माइनस 2 है, नहीं कर सकते इसमें तो, क्योंकि ये तो एफ डी हो गया और ये जो 2 है मतलब a के प्लस पे है, इस 2 को यहां पर रखेंगे तो जीरो हो जाएगा. इस केस में नहीं होगा तो यहां लिखना पड़ेगा प्रोवाइडेड एफ ए इज नॉट इक्वल टू 0, या फिर जीरो नहीं होना चाहिए. अगर जीरो नहीं है अब हो गया, सॉल्व, खत्म, कंप्लीट हो गया. जैसे यहां पर अगर ये फॉर्मूला में यहां पर क्या होता, d प्लस 2 होता, 1 अपॉन डी, ये तो इसकी वैल्यू क्या हो जाता, 2 को यहां रखना है तो क्या आ जाएगा, 2 प्लस 2 4, 1/4 e to the power 2x. हो गया, सॉल्व हो गया, खत्म. बट यहाँ पर -2 रखोगे तो फिर तो नहीं हो पाएगा, तो नीचे जीरो आ जाएगा. ये फेलर केस है. ये फेलर केस के लिए फॉर्मूला लिखने का और टेक्निक है इसमें, है ना. फर्स्ट ऑफ ऑल ये जीरो नहीं होना है, सॉल्व, एंड इफ एफ ए इक्वल्स टू 0, देन फर्स्ट चांस पता चला जीरो आ रहा है, अब क्या करें उसके लिए, तो उसके लिए फिर फॉर्मूला में क्या करेक्शन हो गया, फॉर्मूला में करेक्शन हुआ, एफ डी ई टू द पावर ax इक्वल्स टू x 1 अपॉन f डैश a e to the power ax, provided f dash a equals to not 0. क्लियर हो. अगर जीरो आ रहा था ना तो फिर क्या करना है, एक बार उसको डिफरेंशिएट करना है. कौन, किसको, एफ डी को. एफ डी को एक बार डिफरेंशिएट करना है विद रेस्पेक्ट टू डी, डी के रेस्पेक्ट एफ डैश डी निकालना है. जैसे 1 अपॉन क्या था, d माइनस 2 था, इसको डिफरेंशिएशन क्या होगा, d के रेस्पेक्ट में, टेल मी. 1 अपॉन d माइनस 2, इसका डिफरेंशिएशन करना है विद रेस्पेक्ट टू d, क्या होगा वैल्यू, इसका डिफरेंशिएशन करना है d के रेस्पेक्ट में. ये एज ए जैसे लिखते हैं ना x माइनस 2, इसका डिफरेंशिएशन करो x के रेस्पेक्ट में, क्या होगा, हेलो, सर 1 होगा, 1 होगा. तो इसका भी तो डिफरेंशिएशन d के रेस्पेक्ट में, इजी एज ए अननोन लेना है तो d माइनस 2 का अगर डिफरेंशिएशन करोगे d के रेस्पेक्ट में क्या आएगा, 1 आएगा ना. तो आफ्टर डिफरेंशिएशन मान लो d स्क्वायर माइनस 2 था तो क्या होता, डिफरेंशिएशन 2d होता. फिर आफ्टर डिफरेंशिएशन जब वैल्यू रखेंगे d के जगह पे फिर से वो a को, अगर जीरो नहीं हुआ तो ये होगा आंसर. मतलब फेलर केस में मतलब f इक्वल टू 0 आ रहा था
तो हमने क्या किया, नीचे वाले को एक बार डिफरेंशिएट कर दिया, डिफरेंशिएट करके डी के जगह पे ये रखा। अगर ये जीरो नहीं है तो दिस इज आंसर। ये स्पेशल फॉर्मेट बना है। यहाँ एक एक्स लगाना पड़ेगा, एक बार डिफरेंशिएशन एक्स। अगेन सपोज करो कि एक बार डिफरेंशिएशन किया फिर भी जीरो आ रहा है, तो आगे वाला लाइन में क्या फॉर्मूला आएगा, एक एक्स और आ जाएगा, एक्स स्क्वायर आ जाएगा 1/f डबल डैश ए e to the power x, प्रोवाइडेड क्या लिखना पड़ेगा, मतलब ये डबल डैश में भी जीरो नहीं है तो लिख सकते, यहाँ डबल डैश किया तो यहाँ 2 आ गया एंड सो ऑन। सो x का फॉर्मेट अगर ऐसा है तो यू कैन फाइंड द पीआई। फॉर्मूला समझ में आया कि नहीं, बिल्कुल सिंपल फॉर्मूला है। e to the power x है, fd है, ये रख दो, खत्म। अगर ये जीरो नहीं है, जीरो है तो एक बार डिफरेंशिएशन करके फिर रखो, अगर जीरो नहीं है तो एक x लगा के लिख दो। अगर ये भी जीरो आ रहा है एक बार और डिफरेंशिएट करो, फिर आप ये रख दो, जीरो नहीं है तो ये आंसर है। यहाँ पर एक्स स्क्वायर लगाना पड़ेगा, डबल डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर, सिंगल डेरिवेटिव एक्स। अगर 3 बार डेरिवेटिव किया तो यहाँ क्यूब लगेगा, 4 टाइम्स डेरिवेटिव किया तो यहाँ 4 रहेगा। सो दिस इज द टेक्निक फॉर फाइंडिंग ऑफ स्पेशल केस दिस। अगर जीरो नहीं है तो पहले बार में खत्म, जीरो है तो ये फेलर केस है, ऐसे भी लिख सकते हैं। राइट, क्लियर है? हेलो, यस सर। ओके, अभी सर Yes, sir. अपने पास जो क्वेश्चन है वो Yes, sir. कौन सा क्वेश्चन है अभी अपने पास? क्वेश्चन क्या देखे थे हम लोग, ये हो गया था, ये हो गया था पार्टी, हाँ ये देखो, ये वाला क्वेश्चन के लिए है ना। सो हियर फाइंड द पार्टिकुलर इंटीग्रल ऑफ दिस। अब इसका पार्टिकुलर इंटीग्रल की वैल्यू क्या होना है, एफ डी इक्वल्स टू क्या है, केवल पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने बोले हैं, कंप्लीट सॉल्यूशन नहीं बोले हैं। कंप्लीट सॉल्यूशन बोलते हैं तो पहले सीएफडी निकालना पड़ता, फिर पीआई निकालना पड़ता, बट यहाँ पीआई निकालना सीख रहे हैं हम लोग, है ना, कैसे पीआई निकालते हैं। सो हियर यू कैन सी द राइट हैंड साइड हैविंग e to the power 2x, कोई इस फॉर्मेट का है, e to the power x फॉर्मेट का है। सो यू कैन राइट इट्स सॉल्यूशन डायरेक्ट। सो फॉर दैट क्या करना पड़ेगा, पहले here इसका सॉल्यूशन निकाल लेते हैं ना। यार एफ डी इक्वल्स टू व्हाट, टेल मी, तुम ही लोग बताओ एफ डी क्या है। हेलो, एफ डी इक्वल्स टू q minus 3d square plus 4 3d स्क्वायर प्लस 4, dq माइनस 3d स्क्वायर प्लस 4, दिस इज एफ डी। पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालना है तो इसका फैक्टराइजेशन तो पहले करना पड़ेगा। यहाँ पर अगर 2 रखेंगे तो फेल हो जा रहा है, दिख रहा है। पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या होता है, 1/fd ये होता है, और सामने क्या रहता है x। यार x इज व्हाट, e to the power 2x। सो पर्टिकुलर इंटीग्रल 1/fd, fd मतलब क्या, ये dq माइनस 3d स्क्वायर प्लस 4, और x मतलब e to the power 2x। सो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला वी नो दैट ये जो fd है, d के जगह पे इस 2 को रखो, अगर 0 नहीं आया तो सॉल्व हो गया, और 2 रखेंगे तो क्या आएगा यहाँ पर, सी हियर 2 2q मींस 8 और 4 12 माइनस 3 into d स्क्वायर 2 स्क्वायर 4 12 माइनस 0 0 हो जाता है। फेलर केस है, ये फेलर केस है ना। तो क्या करना पड़ेगा, कैसे निकालेंगे, हेलो, फेलर केस में कैसे, नीचे का डिफरेंशिएशन, हाँ वही है, या लिखना पड़ेगा फेलर केस। इसके लिए अभी क्या करना पड़ेगा, एक बार डिफरेंशिएशन करके देखना है ना। x किया 1/, इसका डिफरेंशिएशन करते हैं d के रेस्पेक्ट में एक बार, तो क्या होगा ये 3d स्क्वायर माइनस 6d e to the power 2x। अब d के फॉर्म में है, एक बार अगर इसमें देखो ना, जब डिफरेंशिएशन करने के बाद अब अगर 2 रखे तो क्या हो रहा है,
फिर से 0 आ रहा है ना, फिर से 0 आ रहा है ना। यस सर। तो क्या लिखना है, अगेन फेलर केस। ठीक है, डिफरेंशिएशन किया, सेकेंड टाइम फेलर केस। सेकेंड टाइम फेलर केस में ना, इसमें जो इसमें लिखोगे ना, इस टाइप से लिखना है, इसमें ऐसे लिख देना, ये फेलर केस, अगेन फेलर केस लिख दो। अगेन फेलर केस लिखा हूं, दैट मीन्स एक बार डिफरेंशिएशन किया और फिर 2 रख के देख रहा हूं, नहीं हो रहा है, एक्स यहाँ रखा था सॉल्व करने के लिए, अगेन फेलर केस लिखा है, मतलब ये फाइनल आंसर नहीं है, एक बार और डिफरेंशिएट करके देखते हैं। तो क्या आएगा यहाँ पर, एक्स स्क्वायर, एक बार दो बार, दूसरी बार डिफरेंशिएशन होगा, एक्स स्क्वायर आएगा, 1 अपॉन क्या आना है यहाँ पर, 6d माइनस 6, एक बार और डिफरेंशिएट किया डी के रेस्पेक्ट, तो 6d हो गया यहाँ पर, माइनस 6 हो गया और e टू द पावर 2x हो गया। अब ये फेलर केस है क्या, अब क्या करना है, डिफरेंशिएट करने के बाद फिर 2 को फिर रखना है, अब नहीं आएगा 0, 2 इंटू 6 12 माइनस 6 सॉल्व हो गया। तो क्या हो गया, एक्स स्क्वायर बाई 6 e टू द पावर 2x, दिस इज फाइनल आंसर। क्लियर हुआ। स्पेशल केस e टू द पावर x वाला स्पेशल केस है, इसमें कैसे सॉल्व हो, ये तो हर जगह यूज होता है, फर्स्ट है, तो फेलर केस वाला था ये, 1 बाय 1 करते गए, हो गया, ओके ठीक है। तो एक्स स्क्वायर बाई 6 e टू द पावर 2x, दिस इज द फाइनल पर्टिकुलर इंटीग्रल। यही क्वेश्चन को वैसे भी सॉल्व कर सकते हो, वो जो जनरल मेथड है 1/d माइनस अल्फा से भी, बट ये डायरेक्ट फाइंड होता है वैल्यू, तो स्पेशल टाइप ऑफ फार्मूला बना के रखे हैं बहुत सारे। तो दिस इज फर्स्ट फार्मूला e टू द पावर ax वाला, ओके। सो इन द नेक्स्ट क्लास वी विल कंटिन्यू फॉर फाइंडिंग pi, डिफरेंट टाइप ऑफ मेथड है, वो फॉर्मेट पे डिपेंड करता है इसका कौन सा फॉर्मेट है। सो दिस इज पर्टिकुलर इंटीग्रल, ओके। सो कंप्लीट सॉल्यूशन जब निकालते हैं हमको CF भी निकालना पड़ता है और PI भी निकालना पड़ता है, ओके। सो क्लोज करें ना अभी, हेलो, यस सर। यस सर। ओके ठीक है, मीटिंग क्लोज कर रहा हूँ ना, थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। ओके अटेंडेंस ले लेता हूँ, हाँ यस, ओके ले लिए थे एक बार ना, ठीक।